and clearly visible. Nishant Narang, on behalf of Government Degree College Jwali, welcome all the participants, students, faculty members, and others to this who have joined us from the various parts. Opportunity for all of us to learn about this important and practical aspect of tax filing, personal knowledge and academic purpose. For other faculty members who are interested in enhancing their understanding, respected principal sir, Dr. Dinesh Kumar Sharma, to welcome our esteemed guest speaker, Dr. S.B. Rathore. हेलो हेलो पूरी नहीं आ रही, फुल नहीं आ रही है। Associate Professor of Commerce in 2019. Dr. Rathore holds multiple degrees, including MCom, MPhil, and PhD from CCS University. Dr. Rathore has delivered prestigious institutions such as Hansraj College, Jesus and Delhi University, as well as professional colleges of Indraprasth University, the field. Dr. Rathore, through the intricacies of the to invite our respected principal sir, Dr. Dinesh Kumar Sharma, to formally welcome participants and Dr. S.B. Rathore to this workshop. Yes, sir, you are clearly audible. This is Dr. D.K. Sharma, Kangra, Himachal Pradesh. I would like to welcome all of you in this one-day workshop on the topic e-filing of ITR to Excel Utility by Department of Commerce, Government Degree College, Jwali. And on this occasion, we have with us our resource person, Dr. S.V. Rathore ji, former Associate Professor of Commerce, Shamlal College, University of Delhi. So, on behalf of staff members and students of government, Dr. Rathore, for accepting our request to be a resource person on this occasion in this one-day workshop. Thank you. Thank you very much, sir, Dr. Rathore, for sparing your valuable time to be with us today as a resource person. I also want to appreciate the excellent efforts by a very young and dynamic team of organizing committee from Commerce Department of Government Degree College, Jwali, Professor Nishant Narang, convener of the workshop, and Dr. Madhubala. As I have been told that the main objective is to provide practical exposure to the students for their practical exams and equip teachers with essential knowledge on the subject of income tax e-filing. Also, other faculty members will greatly benefit from understanding of basic of e-filing for their own professional purpose. And as all of us know, under the income tax laws, ITR filing is mandatory if the total taxable income exceeds the basic exemption limit. And there are other provisions in the income tax laws which make ITR filing mandatory. So if the ITR filing is mandatory, so it is very important for a common man like we people to have a basic knowledge about the basic concept of ITR filing. So that is why this workshop today it has been organized. There are various topics which will be covered by the resource person, and Dr. Nishant, he will elaborate all the basic topics which will be covered in this workshop. And expertise of Dr. Rathore as a former associate professor of commerce at Shamlal College, University of Delhi. I hope the students, faculty members, and other participants will definitely get benefit from the tips and the ideas shared by the resource person on the topic e-filing of ITR. So not taking much of your time, as all of you are eagerly waiting for the lecture to be delivered by today's resource person. Once again, I would like to welcome all of you for your participation in this workshop through this Google platform. Thank you very much. And thank you, Dr. Rathore, once again. Thanks a lot. Thank you. Good morning to all the participants. And thank you very much for joining us in this special event. Now, without any further delay, I invite Dr. S.B. Rathore to begin. Good morning to all the participants. And thank you very much. Good morning to all the participants. And thank you very much, Sharma ji and Nishant. मेरा लेक्चर बहुत सिंपल होगा. पार्टिसिपेंट्स में बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कुछ और भी मेंबर्स हैं जो इनकम टैक्स में उनको बेसिक्स नहीं पता होंगे और उनका कॉमर्स डिपार्टमेंट से कोई लिंक नहीं है. मेरे कॉलेज के टीचर्स हैं,
बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस से टीचर्स हैं, पंजाब से टीचर्स हैं, और बाकी हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स में ये ई फाइलिंग ऑफ ITR 2 का पेपर है। हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम है। सेमेस्टर लास्ट ईयर तक थर्ड सेमेस्टर में होता था, इस साल फिफ्थ सेमेस्टर में है, थर्ड ईयर में, और इसके एग्जाम जो होंगे वो हमारे होंगे दिसंबर में। आपके हिमाचल में ये एग्जाम एनुअल मोड में है, एग्जाम होंगे अप्रैल के आसपास। ई फाइलिंग में हम प्रैक्टिकल करते हैं और इसमें ITR 2 हमें फुल फ्लैश केस स्टडी हमें दिया जाता है कंप्यूटर लैब में, और उसको हमने डेटा फीड करना है और JSON उसकी जनरेट करके देनी है। यही टीचर्स को करना होता है। और वैसे भी पब्लिक लाइफ में जब आप ITR फाइल करते हैं तो या तो आप ऑनलाइन करेंगे या करेंगे ऑफलाइन। ऑनलाइन करेंगे तो आपको सिर्फ ITR 1 ही कर पाते हैं, ITR 2, 3, 4 कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आपको एक्सेल यूटिलिटी या JSON यूटिलिटी डाउनलोड करनी होती है, और उसके बाद फिर आपको JSON अपलोड करनी होती है पोर्टल पर। तो यही आज के लेक्चर में हम सब कुछ देखेंगे। पहले मैं आपको कुछ टाइम के लिए PPT दिखाऊंगा, जिसमें आपका 10 की फॉर्मेशंस क्या है जो टेक्स्ट काटता है, पेन की फॉर्मेशंस क्या है, ITR फॉर्म्स कितने तरह के होते हैं, एग्जीक्यूशन लिमिट्स क्या होती है, और अब 2 रिजीम्स हैं पिछले 2-3 साल से, ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम में हमें डिडक्शंस मिलती हैं, HRE की एग्जम्पशंस की है, 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस हैं, लेकिन ऐसा न्यू रिजीम के अंदर नहीं है। उसमें सिर्फ एक डिडक्शंस मिलती है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम। दोनों रिजीम में कौन सा बेटर है ये आपको खुद ही डिसाइड करना होता है, जिसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो। और सैलरीड के केसेस में आप रिजीम ईयर टू ईयर चेंज भी कर सकते हैं, ये भी आपको ऑप्शन होता है। लेकिन यदि आप बिजनेसमैन हैं तो ये आपको मौका सिर्फ एक बार ही मिलता है। तो मैं आपको PPT से शुरू करता हूं। मैंने आपको PPT अपनी ऑलरेडी शेयर कर रखी है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं कि जो आज हम कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर है 23-24, उसका असेसमेंट ईयर होगा 24-25। जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम असेसमेंट ईयर की बात करते हैं। इनकम पीरियड इसमें आएगा 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 2024। एसएससी, हम इनको यहाँ पर क्लाइंट या कस्टमर्स नहीं बोलते हैं। एसएससी इंडिविजुअल हो सकते हैं, फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, लोकल अथॉरिटी हो सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स असेसमेंट और इनकम टैक्स का जो ऑफिसर है वो उसको हम असेसिंग ऑफिसर कहते हैं। एज यहाँ पर देखते हैं, ओल्ड रिजीम के अंदर बेसिक इनिशियल लिमिट अलग अलग है, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी है इंडिविजुअल्स की। नॉन सीनियर जिनकी एज 60 ईयर्स क्रॉस नहीं हुई एज ऑन 1 अप्रैल 2024। सीनियर जिनकी एज 60 हो गई लेकिन 80 से कम है, और सुपर सीनियर जो 1 अप्रैल 2024 को 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हो जाती है। बेसिक इनिशियल लिमिट न्यू रेजिम के अंदर सबके लिए कॉमन है, विच इज 3 लाख। हमारा जो हम इनकम टैक्स का फॉर्म भरते हैं तो हमें स्टेटस देखना होता है कि हमारा स्टेटस रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। क्या आपका स्टे हिंदुस्तान में कितना है, क्या आपका 182 डेज से ज्यादा है, उससे कम है, आपके इनकम का सोर्स क्या है, तो उसके बेसिस पर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाएगा। यदि आपका स्टे बिल्कुल नहीं है या किसी फाइनेंशियल ईयर में 60 डेज से कम है। हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, बिजनेस प्रोफेशंस हैं और अदर सोर्सेज हैं।
और ओल्ड रिजिम के अंदर डिडक्शंस होती हैं, न्यू रिजिम के अंदर आपको डिडक्शन से मिलती है स्टैंडर्ड, और कुछ इनकम एग्जम्प्टेड होती हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता। ये आपके हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, इसमें पेंशन भी इसमें इंक्लूड करते हैं। फैमिली पेंशन को हम इंक्लूड करते हैं अदर सोर्सेज में। हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है तो उसमें इंटरेस्ट और हाउसिंग लोन की एक डिडक्शन मिलती है, न्यू रिजिम के अंदर नहीं मिलेगी। लेट आउट है या आपके एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो आपको ITR 1 फॉर्म नहीं भर पाएंगे, फिर आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। और यदि आपकी 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो 2 प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्युपाइड हो सकती हैं, बाकी प्रॉपर्टीज को माना जाएगा कि आपने या तो लेट आउट हो या आपने डीम्ड लेट आउट हो। किराए पर दे दिया होता तो कितना रेंट आपको मिलता, उस बेसिस पर आपको टैक्स देना होगा। कैपिटल गेन, आप शेयर्स बेच रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, गोल्ड बेच रहे हैं, तो आपको कैपिटल गेन का भी देना होता है, उस पर टैक्स हो। बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, आपका प्रोफेशन हो या बिजनेस हो। अदर सोर्सेज एक रेजिडरी है जो इनकम कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगी, वो आपकी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाती है। फैमिली पेंशन इसी में आएगा। यदि आपने अपना प्रॉपर्टी किसी से रेंट पर ली और उसको दोबारा से रेंट पर दे दिया, उसका भी इनकम जो आएगी वो आपकी अदर सोर्सेज में काउंट होती है। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, FDR का इंटरेस्ट है, शेयर्स का डिविडेंड है, या आपको कोई गिफ्ट की इनकम है, कोई आपको रिलेटिव से नहीं बल्कि अदर देन रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है, वो फिर टैक्सेबल होगा आपका अदर सोर्सेज में। उसकी लिमिट 50,000 से ऊपर है। ग्रॉस टोटल इनकम बोल देते हैं हम। पांचों हेड्स को जब मिला देंगे उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता, PPF का इंटरेस्ट है, और HRE की जो एग्जेम्पशंस होती है उस पर टैक्स नहीं देते, जो ग्रेच्युटी मिलती है उस पर टैक्स नहीं लगता, जो आपको लीव एनकैशमेंट मिलती है उस पर टैक्स लगता। बहुत सारी इनकम ऐसी हैं जो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन HRE की एग्जेम्पशंस यदि आप लेंगे न्यू रिजिम के अंदर तो आपको उसका डिडक्शंस, उसका एग्जेम्पशंस नहीं मिलेगा। डिडक्शंस ओल्ड रिजिम के अंदर है, LIC है, PPF है, PF है, NSCs करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, डोनेशंस है, कुछ डिजीज है स्पेसिफाइड उनका डिडक्शंस, डिसेबिलिटी है या पॉलिटिकल डोनेशन देते हैं आप, इस तरह के डिडक्शंस का आपको फायदा मिलेगा। सिर्फ ओल्ड रिजिम के अंदर, न्यू रिजिम के अंदर किसी तरह का कोई फायदा आपको इस पर नहीं मिलता। जब हम GTI में से डिडक्शंस माइनस कर देंगे वो फिर कहलाता है टैक्सेबल इनकम। इनकम टैक्स की भाषा में उसको बोलते हैं टोटल इनकम, और इस पर ही टैक्स कैलकुलेट होता है। जो मैं आपको स्लैब रेट्स दिखाऊंगा वो नॉर्मल स्लैब रेट्स है। कुछ इनकम आपकी स्पेशल रेट पर टैक्स होती है, जैसे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शेयर्स पर, वो 10% टैक्सेबल है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% टैक्सेबल है। यदि आप शॉर्ट टर्म में शेयर्स बेचते हैं वो 15% टैक्सेबल है। जो आपकी KBC इनकम है, कौन बन गया करोड़पति, लॉटरी की इनकम है, इस तरह की इनकम पर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका टैक्स लगता है 30%। उनको बोलते हैं स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। ये डिडक्शंस हैं जो ओल्ड रिजिम में मिलेंगी आपको। ATC, ATCC 1B, मेडिकल इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, डोनेशंस का, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट का, और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और FDR का इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 है, जबकि नॉन सीनियर के केस में 10,000। लेकिन ये होगा सब ओल्ड रिजिम के अंदर। कौन सा रिजिम बेटर है जिसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी कम है, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप दोनों में कैलकुलेट करें। आप कोई थंब रूल नहीं है, आप दोनों में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें, फिर डिसाइड करें कि कौन सा रिजिम आपके लिए बेटर है। ये मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है कि हम कैसे देखते हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सीनियर सिटीजन, नॉन सीनियर, सुपर सीनियर या नॉन रेजिडेंट, बॉर्न ऑन और बिफोर नॉट अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स, 1 अप्रैल 2024 से पहले या उस तक 1 अप्रैल तक,
यदि आपकी एज 60 साल हो गई तो आप आएंगे सीनियर में, और 60 साल से कम है तो आप कहलाएंगे नॉन सीनियर सिटीजन। और ओल्ड रिजीम के अंदर इसमें आपको मिलेगा एडमिशन में 2.5 लाख। मैंने एग्जांपल दिया राहुल गांधी का, नरेंद्र मोदी जिनका भी रिसेंटली डेट ऑफ बर्थ आपने देखा 17 सितंबर है, ये सीनियर सिटीजन है क्योंकि इनकी एज 1 अप्रैल 2024 को 60 साल से ऊपर हो गई और 80 से कम है। इनके लिए एडमिशन लिमिट ओल्ड रिजीम के अंदर 3 लाख। एग्जाम्पल सुपर सीनियर का, अडवाणी जी का, इनकी डेट ऑफ बर्थ 8 नवंबर 1927, ये 80 क्रॉस कर चुके हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2024। इनके लिए ओल्ड रिजीम के अंदर मिलेगी 5 लाख। और नॉन रेजिडेंट के केस में जिनका स्टे 182 से कम है, जिनका स्टे फाइनेंशियल ईयर में लास्ट में 60 डेज, 4 साल में 365 डेज, और इसी तरह की 2 एडिशनल कंडीशंस। और यदि आप उनको क्वालिफाई नहीं करते तो आप कहलाएंगे नॉन रेजिडेंट, और उसमें बेसिक एडमिशन लिमिट है 2,50,000 इन केस ऑफ ओल्ड रिजीम। न्यू रिजीम के अंदर नॉन रेजिडेंट को भी 3 लाख की लिमिट मिलेगी। रेजिडेंट कौन है, नॉन रेजिडेंट कौन है? जो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई ना कर पाए वो बन जाता है नॉन रेजिडेंट। और न्यू रिजीम के अंदर चाहे राहुल गांधी हो, मोदी हो, अडवाणी हो या इमरान खान, सबके लिए एडमिशन लिमिट 3 लाख फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। कोई जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई एज का डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबके लिए 3 लाख। और ये हिंदुस्तान में टैक्स रेट्स, यदि आप सोचें कि आज बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है। 1972-73 में मैक्सिमम टैक्स रेट रहे हिंदुस्तान में 97.75%। यदि आपकी इनकम 2 लाख से ऊपर है तो 85% था टैक्स रेट, और उस पर सरचार्ज 15% ऑफ 85, दोनों का टोटल मिलकर बनता है 97.75%। यदि आप 100 रुपए कमाते थे तो 2 रुपए 25 पैसे आपको घर ले जाएंगे और बाकी 97.75 रुपीस आपको देने होते थे गवर्नमेंट। आज भी ओल्ड रिजीम के अंदर जो टैक्स रेट है लास्ट वाला 5 करोड़ से ऊपर वाला, उसका परसेंटेज है 42.744%। ये फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। एज मैंने जैसे आपको बताया 1 अप्रैल 2004। एडमिशन लिमिट नॉन सीनियर के लिए 2.5 लाख, सीनियर के लिए 3 लाख, सुपर के लिए 5 लाख। एडमिशन लिमिट टू 5 लाख। यदि कोई नॉन सीनियर है, सीनियर है तो अप टू 5 लाख 5% होगा। सुपर सीनियर, सीनियर, नॉन सीनियर सबके लिए स्लैब 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। सरचार्ज टैक्स पर टैक्स, यदि आपकी इनकम टैक्सेबल 50 लाख से ऊपर हो जाती है तो 10% आपको जितना टैक्स बनेगा उस पर सरचार्ज भी देना है। यदि आपकी 1 करोड़ से ऊपर 15%, 2 करोड़ से ऊपर 25%, 5 करोड़ से ऊपर 37%। फिर आप इनकम और सरचार्ज को जोड़ें, दोनों को मिला दें, फिर लगेगा हेल्थ एजुकेशन विच इज 4%। लेकिन हाँ, स्मॉल टैक्सपेयर्स के लिए एक रिलीफ है। यदि आपकी इनकम 5 लाख तक है ओल्ड रिजीम के अंदर, तो जितना भी टैक्स बनेगा आपका वो 12,500 से ज्यादा नहीं बनेगा, वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन ये रिबेट नॉन रेजिडेंट को अवेलेबल नहीं है। ये टैक्स रेट्स हमारे न्यू रिजीम के अंदर एडमिशन लिमिट जो ऑल इंडिविजुअल्स 3 लाख, कोई भी एज हो और कोई भी स्टेटस हो। सरचार्ज यहां पर 37% नहीं है, मैक्सिमम यहां पर 25% है। हेल्थ एजुकेशन वही 4%। रिबेट यहां पर 27,25,000 है। उसका रीजन यह है, गवर्नमेंट ने कहा है यदि आप न्यू रिजीम ऑप्ट करते हैं और यदि आपकी टैक्स इनकम 7 लाख तक है
तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जो टैक्स बनेगा मैक्सिमम 25,000 और वो आपका फ्री हो जाएगा। 3 लाख से 6 लाख 5%, ये अमाउंट हुआ 10,000 और 6 लाख से 7 लाख हो गया 10%, 10,000 अमाउंट हो जाता है 25,000, वो आपका फ्री हो जाएगा यदि आपकी इनकम अप टू 7 लाख है। हाँ, यदि 7 लाख से ऊपर है तो एक मार्जिनल लीफ मिलता है, और यदि आपकी इनकम 7,50,000 हो जाए, 8 लाख हो जाए, तो आपके लिए टैक्स रेट चलेंगे 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, 9 to 12, 12 to 15, और यहां पर 15 से ऊपर 30%, जबकि ओल्ड रिजिम के अंदर यहां आपका जो टैक्स रेट्स है वो 30% है। न्यू रिजिम के अंदर 15 लाख के ऊपर 30% है। यहां पर आप फैमिली पेंशन में डिडक्शन मिलती हैं 15,000 1/3 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। इस साल बढ़ गई है, इस साल 25 कर दी गई है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। कोई डिडक्शन तो मिलेगी इसमें, लेकिन 80C से लेकर 80 तक डिडक्शन नहीं मिलेगी न्यू रिजिम के अंदर, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस अलाउड है न्यू रिजिम के अंदर। ये डिडक्शंस जो आपको ओल्ड रिजिम के अंदर तो मिलती हैं, लेकिन न्यू रिजिम के अंदर आपको नहीं मिलती। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप दोनों रिजिम्स के अंदर अपना टैक्स कैलकुलेट करें, जिसमें आपको फायदा हो वो आप चूज कर सकते हैं। लेकिन इस साल से एक बात और की गई कि यदि आपको ओल्ड रिजिम चूज करना है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द आईटीआर जो कि 31 जुलाई थी, उससे पहले चूज कर सकते हैं। आज की डेट में आप चूज नहीं कर सकते ओल्ड रिजिम। सेक्शन 16 के अंदर टैक्स एम्प्लॉयमेंट हाउसिंग लोन का आपने देखा 2 लाख तक सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगा न्यू रिजिम के अंदर। जो आप रेंट पर मकान लेकर जो आप एग्जीम्पशन लेते हैं वो नहीं मिलेगा आपको न्यू रिजिम के अंदर। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड सब्जेक्ट मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, ये आपको नहीं मिलेगा न्यू रिजिम के अंदर। हॉस्टल अलाउंस में अमाउंट 300 रुपए वो नहीं मिलेगा। माइनर चाइल्ड को हम एग्जीम्पशन देते हैं 1500 रुपए पर चाइल्ड, जब हम क्लबिंग करते हैं वो आपको नहीं मिलेगी न्यू रिजिम के अंदर। 80C, 80CCC, 80CCD 1B, ये सब डिडक्शंस कोई आपको मिलने वाली नहीं है। मेडिकल इंश्योरेंस नॉन सीनियर का 25, सीनियर का 50,000, ये भी आपको नहीं मिलता। और जो आपकी 6 डिजीज हैं, कैंसर है, एड्स है, थैलेसीमिया है, न्यूरो की डिजीज है, उसमें नॉन सीनियर को 40,000 और सीनियर को 1 लाख, वो डिडक्शंस आपको ओल्ड रिजिम के अंदर तो मिलेगी लेकिन नए के अंदर नहीं मिलेगी। इस तरह की डिडक्शंस डोनेशंस हैं। 80 TTA 10,000 नॉन सीनियर के लिए और सीनियर के लिए 50,000, ये भी आपको डिडक्शंस नहीं मिलती न्यू रिजिम के अंदर। ये जब हम अभी डेट की बात कर रहे थे 2023-24 की आईटीआर की लास्ट डेट 31 जुलाई 2024। यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपको लेट फीस देनी होगी 5,000। आज की डेट में आपको लेट फीस पे करनी होगी 5,000। यदि आपकी 5 लाख तक है तो आपको लेट फीस देनी है 1,000। और 31 मार्च 2024 के बाद तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए अपडेटेड रिटर्न का एक प्रोविजन है जिसमें पेनल्टी लगती है 25% या 50%। ओरिजिनल रिटर्न को आप कितनी बार रिवाइज करें? 31 दिसंबर 24 तक। उसकी कोई फीस नहीं लगेगी यदि आपने टाइम पर ओरिजिनल फाइल कर दी और फिर उसके बाद आप इसको रिवाइज करते हैं तो। इसलिए यदि बाई चांस आप जल्दी में हैं, आपके पास डाटा नहीं है, तो आप रिटर्न फाइल कर दें टाइम पर 31 जुलाई और बाद में उसको रिवाइज कर दें। और रिटर्न को ई वेरीफाई करना भी जरूरी है। पहले वो टाइम ज्यादा होता था 120 डेज, आज की डेट में है लास्ट ईयर से चेंज किया 30 डेज के अंदर आपको ई वेरीफाई करना है। यदि आप ई वेरीफाई नहीं करते तो ये माना जाएगा कि आपने रिटर्न सबमिट की ही नहीं है। इट इज एज गुड एज यू हैव नॉट फाइल्ड द आईटीआर। ये पैन की फॉर्मेशन, आप अपना पैन कार्ड देखें
उसमें 10 अल्फा न्यूमेरिक नंबर होगा। पहले 3 आपकी बताते हैं सीरीज। ये ट्रिपल ए से सीरीज शुरू हुई थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे FM फाइनेंस मिनिस्टर। 3 अल्फाबेट आपको सीरीज बताएंगे। जो चौथा अल्फाबेट है वो बताते हैं कि आपकी कैटेगरी ऑफ द एसएससी क्या है। यदि आप हैं इंडिविजुअल्स तो होगा P, यदि आप कंपनी हैं तो होगा C, पार्टनरशिप फर्म होगा तो F, लोकल अथॉरिटी होगा तो L, जुडिशियल पर्सन होगा तो J, और नेक्स्ट अल्फाबेट आपका होगा सरनेम। फिर इसके बाद 4 न्यूमेरिकल और लास्ट में अल्फा चेक। ये पैन नंबर है हमारे PM का, उसमें M उनका सरनेम मोदी, AHH सीरीज, P फॉर इंडिविजुअल, M फॉर मोदी, 4 न्यूमेरिकल और लास्ट में अल्फा चेक। आपके पैन कार्ड पर नाम होता है, फादर्स नेम्स होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, फोटो होते हैं, आपके सिग्नेचर होते हैं। उस पर कोई एड्रेस नहीं होता, परमानेंट कार्ड है। और इसमें फीमेल्स के केसेस में भी कोई हस्बैंड्स का नेम नहीं होता, उसमें भी फादर्स का नाम होता है। कोई नाम के आगे डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, कंपनी सेक्रेटरी, CA, कोई भी एब्रिविएशन लगा नहीं होता। ये कुछ एग्जांपल्स। पहले हम डेट ऑफ बर्थ डालते थे और नाम डालें तो हमें पैन नंबर मिल जाता था और कहां से इश्यू हुआ मिल जाता था, और ये 10 साल पहले होता था। अब आप ऐसा नहीं कर सकते। मनमोहन सिंह, सिंह इनका सरनेम, और AAA सीरीज इनका पहला कार्ड था पैन के अंदर, नेवल सिस्टम के अंदर। AAA सीरीज, P फॉर इंडिविजुअल, S फॉर सिंह, 001 एक कंप्यूटर जनरेटेड नंबर, R अल्फा चेक। सोनिया गांधी, AAE सीरीज, P फॉर इंडिविजुअल, G फॉर गांधी, और फिर 4 न्यूमेरिकल और लास्ट में अल्फा चेक। यदि नाम होता सौरभ, सिंगल नेम है, तो इसको हम सरनेम के अंदर लिखते हैं। जब पैन कार्ड बनाते हैं, पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, तो उसमें सौरभ में BHO सीरीज है, P फॉर इंडिविजुअल, S फॉर सौरभ, न्यूमेरिकल, लास्ट में अल्फा चेक। श्यामलाल कॉलेज मेरा अपना कॉलेज, जहां मैंने 40 ईयर सर्विस की, 77 से लेकर दिसंबर 19 तक, और मुझे करीब 5 साल अब रिटायरमेंट को हो गए हैं, लेकिन अभी मेरी टीचिंग उसी तरीके से कंटिन्यूड है जैसे सर्विस के दौरान थी। AAA सीरीज, L फॉर लोकल अथॉरिटी। यदि इंस्टीट्यूशन है तो उसमें आएगा उसका फर्स्ट अल्फाबेट। श्यामलाल कॉलेज का S, 0637 न्यूमेरिकल और लास्ट में अल्फा चेक। सलमान, सलीम खान, खान हो गया आपका सरनेम और उसमें के आ गया। AAC सीरीज, P फॉर इंडिविजुअल, न्यूमेरिकल, अल्फा चेक। इसी तरीके से अभिषेक अमिताभ बच्चन, AE सीरीज, P फॉर इंडिविजुअल, B फॉर बच्चन, न्यूमेरिकल और लास्ट में अल्फा चेक। ये 10 नंबर। जो भी कोई टैक्स काटेगा आपका कॉलेज हो, आपका बैंक हो, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो, जब तक उसके पास 10 नंबर नहीं होगा वो आपका टैक्स नहीं काट सकता। ये मेरे कॉलेज का 10 नंबर। ये 10 अल्फा न्यूमेरिक, पहले 3 आपकी सिटी बताते हैं। श्यामलाल कॉलेज का फर्स्ट अल्फाबेट S, 5 आपके न्यूमेरिकल और लास्ट में अल्फा चेक। जब आप ITR फाइल करेंगे, यदि आपने इसमें गलती कर दी 10 नंबर लिखने में, तो आपको जो टैक्स आपका काटा गया उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसलिए इसका फॉर्मेट आपको ध्यान रखना चाहिए। गलती से 10 नंबर आपने कोई गलत नहीं लिखना। यदि गलत लिख दिया तो आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर आपको आएगा नोटिस और फिर आपको उसका जवाब देना है और फिर आपको अपने पोर्टल पर जाके करना होगा इसकी करेक्शंस। नेम ऑफ द सिटी, पहले 3 अल्फाबेट्स, फर्स्ट इनिशियल लेटर श्यामलाल का S, 5 न्यूमेरिकल, और 5 न्यूमेरिकल को आप डिवाइड करें 7 से। यदि इसका रिमाइंडर बचता है 0 तो लास्ट में अल्फा चेक आएगा A। यदि बचता है 1 तो B,
2 बचता है तो C, और इस तरह से इसमें 25849 को आप डिवाइड करेंगे 7 से तो अल्फा चेक आ रहा है इसमें F, क्योंकि रिमाइंडर बचता है हमारा 5। दौलतराम कॉलेज का 00040 न्यूमेरिकल है, इसको 7 से डिवाइड करें 5 रिमाइंडर बचेगा, अल्फा चेक आ गया F। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, इसका नंबर है 28067, इसको आप डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर बचेगा 4, इसलिए अल्फा चेक है E। ये कुछ और एग्जांपल्स, श्यामलाल कॉलेज, मातांसुरी कॉलेज, गार्गी कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, दौलतराम कॉलेज, अल्फा हंसराज कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी DEL, दिल्ली में रजिस्टर्ड हुई, D फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, 5 न्यूमेरिकल, इसको डिवाइड किया 7 से, रिमाइंडर बचा 6 आ गया G। HDFC बैंक मुंबई में है, HDFC बैंक का H, 5 न्यूमेरिकल, रिमाइंडर बचा 4, अल्फा चेक E। ITC लिमिटेड कलकत्ता, यहां पर कोलकाता नहीं है, जो आपका एक परमानेंट नंबर है, दिल्ली का DEL रहेगा, मुंबई का MUM है, बॉम्बे का BOM यहां पर नहीं आ रहा, अमृतसर का ASR होगा। I फॉर ITC लिमिटेड 00091, आप 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर बचता है 0, अल्फा चेक आ गया A। एडवांस टैक्स, जो आप टैक्स 31 मार्च से पहले देते हैं उसको कहते हैं एडवांस टैक्स। जब हम आईटीआर भरेंगे तो शेड्यूल उसमें एक ही है, शेड्यूल में कोई फर्क नहीं है, एडवांस टैक्स हो या सेल्फ असेसमेंट। यदि आप जिस फाइनेंशियल की आईटीआर फाइल कर रहे हैं उसकी रिटर्न भरते हैं और टैक्स का पेमेंट करते हैं आप 1 अप्रैल ऑनवर्ड, उसको बोलेंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स। उसमें आपको एक BSR, जब आप टैक्स पे करते हैं तो आजकल आपको पोर्टल से ही जनरेट करना होता है, एक BSR कोड मिलेगा, वो आपको डालना है 7 डिजिट का, और चालान नंबर, 5 न्यूमेरिकल्स, डेट ऑफ चालान और चालान नंबर, ये आपको चीजें इंसर्ट करनी होती हैं अपने शेड्यूल के अंदर जब आप आईटीआर फाइल करते हैं। आपको एक बैंक अकाउंट देना मैंडेटरी है, एक बैंक अकाउंट यदि आप नहीं देते तो आपकी रिटर्न अपलोड नहीं होगी। उसमें आपको उसका IFSC कोड देना है, और IFSC कोड में आप ध्यान रखें ये 11 कैरेक्टर्स का होता है, पहले 4 अल्फा है, 5th हमेशा 0 होगा, और लास्ट के 6 अल्फा भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये यूनिक नंबर होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBIN 0, और बाद में इसके 6 हैं, 006623। HDFC बैंक HDFC 5 times 0 91। दिल्ली सहकारी बैंक SB 4 अल्फा हो गए 0, और बाद में 6 अल्फा न्यूमेरिकल। गिफ्ट, जैसे मैंने आपको बताया था 50,000 तक गिफ्ट कोई भी दे आपको पूरे साल, वो टैक्स फ्री होगा नॉन रिलेटिव से। यदि आपका रिलेटिव है, आपको अपने बच्चों से गिफ्ट मिलता है, बच्चों के बच्चों से गिफ्ट मिलता है, पेरेंट्स से मिलता है, उनके पेरेंट्स से मिलता है, आपको ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता है, ब्रदर से मिले, सिस्टर से मिले, आपके पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर से मिले, आपको अपनी स्पाउस मिलता है, सास ससुर से पैसा मिलता है, साले से पैसा मिलता है, तब भी वो एग्जम्प्टेड है। एक रिलेटिव की डेफिनेशन है, उसमें कोई ओकेजन नहीं, कोई रीजन नहीं, अनलिमिटेड अमाउंट आपका टैक्स फ्री हो जाएगा यदि आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है, कैश में मिले या काइंड्स मिले। लेकिन नॉन रिलेटिव से मिलेगा तो 50,000 से मिलते के साथ ही पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। यदि आपको मिला 51,000 तो वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। यदि दादाजी के ब्रदर से मिलेगा तो दादाजी से मिला हुआ तो टैक्स फ्री है, लेकिन दादाजी के भाई से मिले, दादाजी की बहन से मिले, वहां पर टैक्स फ्री नहीं होगा, वो रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आता। या स्पाउस के एक्सपाउस से, यदि किसी ने
डाइवोर्सी से शादी की, उसको अपनी वाइफ के पुराने वाले हस्बैंड से पैसा मिल रहा है, वो टैक्सेबल होगा, वो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इसी तरीके से यदि आपको मैरिजबल टैक्स मिलता है गिफ्ट किसी से भी, वो टैक्स फ्री होगा। बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर मिला हुआ पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। रिलेटिव से मिलेगा टैक्स फ्री होगा, नॉन रिलेटिव से मिलेगा टैक्सेबल हो जाएगा। और लिमिट वही 50,000। विल से मिले पैसा आपको, कोई मेरे नाम पर विल कर गया और मुझे कोई प्रॉपर्टी मिलती है, वो टैक्स फ्री होगी। इनहेरिटेंस, ये जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको कुछ एडवांस टैक्स देना होता है। जो आप रिटर्न आज हम जनरेट करेंगे तो उसमें टैक्स निकलेगा। यदि आपने टैक्स पूरा नहीं दिया तो 234A लेट फाइलिंग के बाद शुरू होगी, 234B 1 अप्रैल 2024 के बाद शुरू हो जाता है, उसका इंटरेस्ट 1% पर मंथ के हिसाब से। और 234C ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं 31 मार्च 24 की इंतजार ना करूं। जब फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उससे पहले मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं देखूं मेरी टोटल इनकम कितनी है और टोटल इनकम टैक्स कितना कटेगा पूरे साल में, और उसका डिफरेंस 10,000 से ज्यादा है तो मुझे 15% एडवांस टैक्स जमा कराना है। उस बैलेंस टैक्स लाइबिलिटी का बाय 15 जून, 15 सितंबर 45%, 75%, 100%। यदि मैं डिफॉल्ट करता हूं तो मुझे इंटरेस्ट देना होता है, ये होता है 234C। यदि मैंने टैक्स का भुगतान नहीं किया और मैं रिटर्न फाइल करते टाइम करता हूं तो 234B का इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा 31 मार्च के बाद 1%। और मैं डिफॉल्ट करता हूं 31 जुलाई के बाद, रिटर्न फाइल नहीं करता तो 1% लेट फाइलिंग का भी 234A के अंदर लगेगा। ITR जब आप सबमिट करते हैं तो सिर्फ आपको अपनी इनकम ही नहीं देखनी, बल्कि यह भी देखना है यदि मान लीजिए बिजली का बिल आपका 1 लाख से ज्यादा है पूरे साल का, तभी आपको ITR भरनी मैंडेटरी है। यदि फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर आपका 2 लाख से ज्यादा है अपने लिए या किसी और के लिए, तभी आपको ITR भरनी मैंडेटरी है। और वैसे भी इनकम टैक्स भरने में कोई दिक्कत नहीं है, इसके फायदे ही हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। और ऑनलाइन वैसे भी बहुत सिंपल है। ITR 1, ITR 2, ITR 7 तक फॉर्म्स हैं आपके। आपको सिलेक्शन ऑफ फॉर्म बहुत ध्यान से करना होता है, डिपेंड करता है कि आपकी इनकम का हेड्स क्या है, इनकम का अमाउंट क्या है। यदि आपकी सैलरी है एक एम्प्लॉयर से, एक प्रॉपर्टी है, आपकी 2 प्रॉपर्टी इनकम टैक्स में अलाउड हैं, लेकिन आपकी 2 प्रॉपर्टी है तब ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। अदर सोर्सेस क्लबिंग नहीं होना चाहिए आपका, इंटरेस्ट हो सकता है, FDR इंटरेस्ट हो सकता है तो आप ITR 1। ITR 2 में सैलरी, प्रॉपर्टी, यदि आपने शेयर्स बेच दिया तो आप ITR 1 नहीं भर पाएंगे, फिर आपको कैपिटल गेन आ गया। अदर सोर्सेस क्लबिंग, माइनर की इनकम, स्पाउस की इनकम, कोई लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने आपने, एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5 से ज्यादा है तो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी ITR 2 के अंदर। ITR 3 बिजनेस प्रॉफिट की इनकम है तो ITR 3। यदि आपकी प्रॉपर्टी 1 हो, बिजनेस प्रॉफिट की इनकम हो और इनकम 50 लाख से ज्यादा ना हो, फिर आप ITR 4 भर सकते हैं। एक छोटा फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में ITR 5, कंपनीज में 6 और 7 ट्रस्ट के अंदर। ऑफलाइन ऑनलाइन फैसिलिटी है, ऑनलाइन ITR 1, 2, 3, 4 की है। अदरवाइज फिर आपको यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी और फिर आप करेंगे। ये मैंने बताया आपको ITR 1 के बारे में। यदि आप जेसन यूटिलिटी के अंदर काम करते हैं तो या तो आप करेंगे ऑनलाइन, नहीं तो आपको प्री फिल्ड डाटा आपको चाहिए होगा। एक्सेल के अंदर जैसे आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें प्री फिल्ड डाटा नहीं चाहिए। ऑनलाइन incometax.gov.in। एक प्रॉपर्टी अलाउड है ITR 1 के अंदर, वैसे 2 प्रॉपर्टी पर कोई आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, दोनों की दोनों आपकी सेल्फ ऑक्युपाइड हो सकती है। लेकिन ITR 1 के अंदर यदि आपकी टैक्स इनकम हो गई 50 लाख से ज्यादा तब ITR 1 एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, आप ITR 1 के अंदर फॉर्म नहीं भर सकते। एग्रीकल्चर इनकम 5 से ज्यादा अलाउड नहीं है। कोई आप शेयर्स बेचें, प्रॉपर्टी बेचें, गोल्ड बेचें, आप ITR 1 से काम नहीं चला सकते। कोई क्लबिंग नहीं कर सकते, सन की इनकम, स्पाउस की इनकम, बिजनेस प्रॉफिट की इनकम नहीं कर सकते।
कोई अनलिस्टेड शेयर के आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तब भी आप आइटर 1 नहीं फाइल कर पाएंगे। और ये एक्सेल यूटिलिटी जो हम आइटर 2 कैसे डाउनलोड करते हैं मैं आपको भी करके दिखाऊंगा। हम वेबसाइट पर जाएंगे incometax.gov.in, वहां पर आइटर 2 क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको डेस्कटॉप पर ले आके सबसे पहले आप उसको कर लें रीनेम। और इस शीट के अंदर जो आपकी शीट्स है, टोटल आपको 32 शीट्स मिलती हैं। इसमें किसी तरह का कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल+C, कंट्रोल+V एटसेट्रा आपको नहीं करना होगा। यदि इस टाइम तक कोई क्वेरीज हैं तो मैं क्वेरीज का फिलहाल हम आंसर कर देते हैं, नहीं तो मैं डाउनलोडिंग पर आपको बताऊंगा कि हम डाउनलोड कैसे करेंगे। हाँ बताएं। सिद्धार्थ वर्मा जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरचार्ज? सरचार्ज और टैक्स पर टैक्स लगता है। यदि आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है तो जो आपका टैक्स निकला उस पर आपको 10% सरचार्ज देना होगा। इनकम टैक्स जो कैलकुलेट होगा 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, 9 से 12, जो भी आपका इनकम टैक्स बनेगा उस पर आपको सरचार्ज देना होगा 10%। यदि आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है फिर आप जितना टैक्स इनकम टैक्स लायबिलिटी बनेगी उस पर लगेगा 15%, 25%। और ओल्ड रिजीम के अंदर मैक्सिमम जो है 5 करोड़ से ऊपर 37%। वैसे रिजीम इज बेटर 50 लाख 15 लाख से यदि आपकी इनकम ऊपर है तो आपको देखना होगा कि आपको टोटल डिडक्शंस आपकी कितनी है। यदि आपकी टोटल डिडक्शंस नॉन रेजिडेंट के केस में 3,66,667 है तो आपको ओल्ड रिजीम बेहतर रहेगा। और यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो सॉरी, नॉन सीनियर के केस में 375, सीनियर के केस में 3,66,667 और सुपर सीनियर के केस में 3,33,333। तो हर टाइम आपको चेक करना चाहिए। आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर, इनकम टैक्स वेबसाइट पर। दोनों रिजीम के अंदर आप कैलकुलेट करें अपनी लायबिलिटी और फिर उसके बाद आप देखें कि आप में टैक्स लायबिलिटी जिसमें कम हो उसको आप चूज कर लें। अल्फा चेक ये कंप्यूटर का अपने एक सिस्टम है कि वो आपका जो पैन नंबर के जो पहले फॉर्मेट है उसको चेक करके अल्फा चेक एक अल्फा क्रिएट करता है। ये कंप्यूटर जनरेटेड है। यदि आप डेडलाइन मिस कर देते हैं कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, 31 जुलाई निकल चुकी है। आप लेट फीस के साथ रिटर्न आज भी फाइल कर सकते हैं। लेट फीस लगेगी 5,000 यदि आपकी टैक्स इनकम 5,000 से ज्यादा है, और यदि आपकी इनकम 5 लाख तक है, रिसीव कोई भी हो, लेट फीस लगेगी 1,000 रुपीज। और यदि आपकी इनकम 1.5 लाख 2 लाख है तो आपको कोई लेट फीस नहीं लगेगी। 31 दिसंबर 2024 के बाद आप रिटर्न को सिंपल तरीके से फाइल नहीं कर पाएंगे, फिर लगेगी पेनल्टी 25% अप टू 31 मार्च 2026। जी हाँ, आप एक बार डेट में आपको बता रहा हूं, 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 मार्च 26 तक जो भी टैक्स बनेगा उस पर आपको पेनल्टी लगेगी 25% इन एडिशन टू लेट फीस, इन एडिशन टू इंटरेस्ट। और 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 27 तक आपको पेनल्टी देनी होगी 50%। इसको बोलते हैं अपडेट रिटर्न। सेक्शन एप्लीकेबल 139 ब्रैकेट में 8A। स्लाइड्स आपको मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजी हुई हैं, वो आप देख लें, आइटर 1 की, आइटर 2 की। और पूरा लेक्चर मैंने निशांत को कहा है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, गूगल पर होगा और वहां से डाउनलोड करके एडिटिंग करके हम इसको अपना यूट्यूब पर और मेरी वेबसाइट पर भी होगा। न्यू रिजीम सैलरी वाला व्यक्ति कभी भी चूज कर सकता है टिल डेट ऑफ फाइलिंग, चाहे वो 31 दिसंबर हो या आपकी 31 मार्च 27। लेकिन ओल्ड रिजीम की डेट जा चुकी है जो कि थी 31 जुलाई 2024। 31 जुलाई 24 के बाद आप ओल्ड रिजीम में कोई भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। हाँ, यदि आपने ओरिजिनल फाइल कर रखी है तो उसको रिवाइज फिर आपको उसी रिजीम के अंदर करना। ये देखिए मैंने ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम के अंदर कुछ, ये देखिए ओल्ड रिजीम के अंदर है 4 लाख यदि आपकी इनकम है। रेजिडेंट नॉन एरियर के केस में 2.5 लाख आपकी टैक्स फ्री है, 2.5 से 4
अमाउंट आया आपका 1.5 लाख, बन गया 7,500। 87A की रिबेट की वजह से इसकी टैक्स लायबिलिटी 0 बन जाती है। यदि यही केस मोदी जी का हो, वो सीनियर हैं, 3 लाख इनके लिए फ्री है, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5,000 रुपये अमाउंट हुआ, और 87A की रिबेट की वजह से ये टैक्स इनका 0 हो गया। आडवाणी जी के केस में 5 लाख तक वैसे ही फ्री है, कोई हम टैक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे और सब कुछ फ्री। लेकिन इमरान खान के केस में 2.5 लाख फ्री तो है, लेकिन इनको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। 87A की रिबेट नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलती, तो इनका टैक्स बना 7,500 और उस पर एजुकेशन सेस लग गया 4%। ये 12 लाख का केस। यदि इनकम हो 12 लाख, हम ये ऑर्डिनरी की बात कर रहे हैं फिलहाल, 2.5 तक फ्री फॉर राहुल गांधी, 2.5 to 5% 12,500, 5 लाख से 10 लाख 20%, 1 लाख, 10 लाख से ऊपर 2 लाख उसका 30%, टोटल हो गया 170 to 500। रिबेट मिलेगी नहीं, 170 to 500, और उस पर हेल्थ एजुकेशन 6,900, टोटल 179,400। मोदी जी के केस में 3 लाख तक फ्री, 3 से 5 10,000, टोटल हो गया 170, हेल्थ एजुकेशन का 176,800। आडवाणी जी के केस में 5 लाख तक फ्री, 5 लाख से 10 लाख 20%, 1 लाख, 1,60,000 टोटल 164,400। इमरान खान का केस और राहुल गांधी का केस की टैक्स लायबिलिटी दोनों की बराबर है। यही हम देखें न्यू रिजीम के अंदर, तो यहां भी टैक्स लायबिलिटी हमने वही निकाली 000, लेकिन इमरान खान के केस में 5,200, क्योंकि यहां पर एडमिशन में सबके लिए 3 लाख, राहुल गांधी हो, मोदी हो या अडवाणी हो, सबके लिए 3 लाख से 6 लाख के बीच में, 1 लाख पर 5%, 87A की रिबेट की वजह से 0 हो गया नॉन सीनियर, सीनियर और सुपर सीनियर का। लेकिन इमरान खान के केस में बीइंग नॉन रेजिडेंट, इन पर एजुकेशन सेस लगा और अमाउंट लग गया 200 रुपया, एजुकेशन सेस अमाउंट हो गया 5200। ये 7 लाख का केस देखें। 7 लाख के केस में यदि इनकम 7 लाख तक है तो आपकी टैक्स बना 15,000, 42 लाख, दूसरा सिर्फ 10,000, 25,000। बिकॉज ऑफ 87A ये अमाउंट 0 हो गया तीनों केस में। लेकिन इमरान खान के केस में बीइंग नॉन रेजिडेंट टैक्स लगेगा 26,000। यदि हम 12 लाख वाला केस देखें तो 15,000, 30,000, सेकंड स्लैब, थर्ड स्लैब 45,000। सबका अमाउंट देखिए सेम है, किसी को रिबेट नहीं मिल रही और सबका अमाउंट है 93,600। यही अमाउंट 20 लाख हो जाए तो देखिए पहला वही 15,000 पहला स्लैब, 30, 45, 60, 15 लाख से ऊपर है 20 लाख तक 5 लाख, 5 लाख का 30%, 5 लाख 1.5 लाख, सबकी टैक्स लायबिलिटी सेम है 3,12,000। और यदि टैक्स लायबिलिटी हम निकालें 75 लाख पर, जो सरचार्ज की बात आ रही थी, ये ओल्ड रिजीम के अंदर है 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्स बना। नॉन रेजिडेंट के केस में, नॉन सीनियर के केस में 22,68,750, इसमें 22,66,000 और 22,55,000। जबकि टैक्स बनाता है 20,62,500। इसका 10% इसमें और जोड़ दिया गया। जो हमने टैक्स निकाला उसके बाद जो टैक्स निकला 20,62,500, उस टैक्स पर 10% और जोड़ दिया 2,06,250 और टोटल बन गया 22,68,750। फिर उसके ऊपर निकाला हमने हेल्थ एजुकेशन सेस। ये ओल्ड रिजीम के अंदर और न्यू रिजीम के अंदर 75 लाख की इनकम पर टैक्स बनेगा, 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, 9 से 12, 12 से 15, अब 15, टोटल टैक्स बना 19,50,000 सबके केस, चारों केसेस में, और उसका 10% 1,95,000, टोटल हो गया 21,45 और उस पर 4% टैक्स लायबिलिटी बन गई। हर केस में 22,30,008। नहीं, ये ठाकुर ललित का एक मैसेज है, आई हैड ऑप्टेड फॉर द न्यू टैक्स regime इन माय प्रीवियस आईटी फाइलिंग, मींस इन्होंने बिफोर ड्यू डेट फाइल कर दी होगी, बट नाउ आई वांट टू स्विच बैक टू ओल्ड, इट इज नॉट पॉसिबल। ओल्ड regime यदि आपने चूज करना था
तो लास्ट डेट जा चुकी है। यदि आप पहले ओल्ड रिज्यूमे कर लेते 31 जुलाई 2024 से पहले, तब आप ओल्ड रिज्यूमे रिवाइज कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। और कोई निशान क्वेरी? ITR will be filed by the SSC. If an SSC has income from all the 5 years, then which ITR? Then ITR 4. ITR 4 दी आपकी इनकम एक लिमिट से कम है, और यदि आपकी इनकम आपकी 50 लाख से ज्यादा हो जाती है, कोई क्लबिंग भी है, तो फिर आपको ITR 3 करना पड़ेगा इंडिविजुअल के केस में। आपकी सैलरी भी है, आपका बिजनेस प्रोफेशंस भी है, आपका कैपिटल गेन भी है, आपका अदर सोर्सेज भी है, तो आपको फिर ITR 3 ही एप्लीकेबल हो। जैसे मेरा अपना केस है, मेरी पेंशन भी आ रही है, मेरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी है, मेरे पास शेयर्स का भी 1-2 ट्रांजेक्शन हो जाती हैं, और मेरी बिजनेस प्रोफेशन इनकम भी है, और अदर सोर्स का इंटरेस्ट भी होता है, तो मैं ITR 3 ही फाइल करता हूँ। ये एक अनु ठाकुर का है कोई फोन, ये मैसेज है। इस रिबेट काइंड ऑफ डिडक्शंस? नहीं, रिबेट और डिडक्शन में फर्क है। डिडक्शंस हैं आपकी ATC से लेकर ATU तक, इनको डिडक्शंस मेनली बोलते हैं। एग्जेम्पशंस HRA वाली को एग्जेम्पशंस बोलते हैं। गिफ्ट जो है इज गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव टैक्स फ्री। यस, बिल्कुल, जो भी आपको रिलेटिव से मिलता है, जो मैंने आपको रिलेटिव की डेफिनेशन बताई है, उसमें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है, उसको कहीं भी रिकॉर्ड भी आपने नहीं करना होता अपनी ITR के अंदर। कैन एडवांस टैक्स बी पेड पार्शली? जो भी आप टैक्स पे करेंगे, मान लीजिए मेरी टैक्स लाइटी 5 लाख रुपए की है, 2 लाख रुपए मैंने 31 मार्च तक पे कर दिया, वो एडवांस टैक्स का आ जाएगा, और बाद वाला सेल्फ असेसमेंट। इसमें पार्शियल या फुल की बात नहीं है। डज ITR टाइप्स हैव इंपैक्ट ऑन टैक्सेबल इनकम? नहीं, ITR टाइप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी ITR आप एडवांस टैक्स दें, सेल्फ असेसमेंट टैक्स दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी ITR फॉर्म आपको प्रॉपर चूज करना चाहिए। यदि आपने ITR फॉर्म गलत चूज कर लिया तो रिटर्न आपकी हो जाएगी इनवैलिड। आप कैपिटल गेन की इनकम ITR फॉर्म में कोई हट नहीं है, वो आप दिखाई नहीं सकते। एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5 से ज्यादा है तो आप दिखाई नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। हाँ निशांत, बाकी क्वारी क्या थी बताओ? नहीं, जो आपको रेमिशन मिलता है इट इज टैक्सेबल अंडर द एक्ट अदर सोर्सेज। जो आपको एग्जाम ड्यूटी में पैसा मिलता है, इन्फ्लेशन ड्यूटी में पैसा मिलता है, वो बात अलग है कि हम दिखाते नहीं हैं। जो कैश में पैसा मिल जाता है उसको हम गोल कर जाते हैं। टैक्स देने में सबका मन थोड़ा सा कचोटता है, लेकिन यदि आपकी कोई भी इनकम AIS में आ जाए, आपकी TIS में आ जाए, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डाटा है, फॉर्म 26 में आ जाए, उसमें कभी भी कोशिश ना करें उस इनकम को ना डिस्क्लोज करने की। यदि आपने इनकम डिस्क्लोज नहीं की तो आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर आपको ढूंढ ढूंढ कर पकड़ेगा और बाद में इशू करेगा नोटिस, और फिर देनी पड़ेगी आपको पेनल्टी। तो आप इनकम टैक्स बचाने की कोशिश ना करें। जो इनकम टैक्स की चोरी चपाटी होती थी आज से बहुत टाइम पहले, आज से 3 साल पहले, वो लगभग नेग्लिजिबल हो गई है। असेसमेंट जो आपकी स्क्रूटनी है वो फेसलेस हो गई है, इनकम टैक्स सिंपल लेवल पर भी और अपील लेवल पर भी। तो मेरी आपको सलाह यही है, किसी तरह की चोरी चपाटी करने की आप कोशिश ना करें। जो आपकी इंफॉर्मेशन AIS में आ जाए, जो आपकी टैक्स पेयर समरी में आ जाए, जो आपके फॉर्म 26 में आ जाए, उसमें किसी तरह की कोताही ना बरतें, नहीं तो आपको इसका खमियाजा बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। यदि आपको सिक्योरिटी में केस आ जाता है तो पेनल्टी फिर लगती है 200%, और बाद में 1 साल का यदि आपकी फाइल खुल गई तो आपको ITO पिछले सालों की फाइल भी खोल के बैठेगा। और जो पैसे का पहले लेन देन होता था कि मैंने ITO से मिल लिया, उसको पैसे खिला दिए, कोई मेरी जान पहचान निकल आई, मेरा कमिश्नर मेरा साला है, मेरी साली है, मेरा ससुर है, ये सब बातें धरी की धरी रह जाएंगी। जब सिक्योरिटी होती है वहां पर 3 तरह की टीम है। इनिशिएट कोई और करेगी, प्रोसेसिंग कोई और करेगी, और रिजल्ट कोई और देगी। 3 अलग अलग टीम होंगी, और आप किसी को ये नहीं पता कि आपकी कौन सी टीम है, क्या टीम है, कहां पर टीम है। उनको आपका नहीं पता और आपको उनका नहीं पता। ये निशान नहीं, दोबारा बताएं क्या? If we receive salary arrears for past 5 हाँ, years, वो तो बाइफरकेशन हमारी यूनिवर्सिटी में भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने सुप्रीम कोर्ट का केस जीता भी। मुझे भी 54 लाख रुपीस
पेंशन के एरियर्स मिले। हमारे कॉलेज में 1 करोड़ रुपए लोगों को एरियर्स मिला। 2006 में रिटायर हो गए, एरियर्स उनको आज मिला। 17 साल की मैंने उसको रिवाइज, उसको हम रिवाइज नहीं बोलते, उसको सेक्शन 89 का रिलीफ बोलते हैं, रिलीफ अंडर सेक्शन 89। और लोगों को रिफंड आए जब आप इनकम को बाइफरकेट करेंगे, क्योंकि इस बार आपकी इनकम हो गई 1,31,00,000, 1,35,00,000, आपकी इनकम पर सरचार्ज लग गया 15%, आपको टैक्स लग गया आपका 40 लाख। फिर मैं इनको रिवाइज किया पिछले 16 सालों में, 17 सालों में, उसको रिवाइज नहीं बोलते, हम उसको सेक्शन 89 का रिलीफ बोलते हैं। और उसमें लोगों को रिफंड, एक मेरे किसी क्लाइंट के केस में आया 90 लाख रिफंड, वो रामजस कॉलेज में थे और रिटायर हुए थे 2010 के अंदर। तो उसको रिवाइज नहीं बोलते, उसको बोलते हैं रिलीफ। यदि आपको एरियर्स मिलते हैं तो सेक्शन 89 के अंदर आप रिलीफ लेंगे उसका। 10E फॉर्म आपको भरना होगा, फॉर्म 10E। ये इंट्राडे जो ट्रेडिंग है, इसमें आपको ITR 3 भरना होगा। ITR 1 से या 2 से काम नहीं चलेगा। ये आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग, इट इज एज गुड एज बिजनेस इनकम। ये आपकी कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैटेगरी में नहीं आएगा। इंट्राडे हो गया या आपकी फॉर्मल ट्रांजेक्शंस एक्सेट्रा हो गया। मुझे इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करते हुए इंडिविजुअल की करीबन 27 ईयर से कर रहा हूँ, 98 ऑनवर्ड। ये विजिट प्राशन का है, बट मोस्ट ऑफ CAs शोज दिस एज बिजनेस रिसीप्ट। हाँ तो ठीक है, ये आपकी बिजनेस इनकम है। ये आप इंट्राडे ट्रेडिंग जो है, ये आपकी बिजनेस इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। इसके अंदर ही आप दिखाएंगे, इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा। हाँ, मैं आपको डाउनलोडिंग बताता हूँ, फिर डाउनलोडिंग के बाद नेक्स्ट उसमें फिर हमने उसको डाटा फीड करना है। और वो मैंने लेक्चर जो है, जो केस स्टडी आपको शेयर कर रखा है, एक बार निशान फिर आप शेयर कर लो उसको, और उसका सॉल्यूशन भी। नहीं तो आप मेरी वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं, वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट है हमारी ई फाइलिंग की, incometax.gov.in। इस पर है डाउनलोड्स। असेसमेंट ईयर बाय डिफॉल्ट 2024-25 ही है। इसमें ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, 5, 6, 7। हमारे यूनिवर्सिटी के केस में ITR 2 हमने कोर्स में रखा हुआ है। तो और कुछ यूनिवर्सिटी के इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, और ये लेक्चर रिकॉर्ड करके हमारा यूनिवर्सिटी टीचर्स का एक ग्रुप है, मैं उसमें भी अपलोड करूंगा और अपनी वेबसाइट पर भी। तो ये, और हम पहली केस स्टडी ले रहे हैं और डॉक्टर VK सिंघानिया की बुक से होगी। हमने इसको ITR 2 को क्लिक किया, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर इंडिविजुअल्स HUF नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। जैसे मैंने आपको कहा था, यदि आपकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है तो फिर आप ITR 2 से काम नहीं चलाएंगे, फिर आपको ITR 3 डाउनलोड करना होगा। ITR 2 में आपका काम नहीं चलेगा यदि आपके बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है तो। और ये है यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड 7.44 MB वर्जन 1.5। कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी यूटिलिटी को अपडेट करता रहता है, और लास्ट अपडेट हुई है ये लेटेस्ट वर्जन 23 जुलाई 2024। इसको मैंने क्लिक किया और ये डाउनलोड हो गई। इस फाइल को, ये जो फाइल है, इसको हम डेस्कटॉप पर ला सकते हैं। ये देखिए, ये आ गया ITR 2 अंडरस्कोर असेसमेंट ईयर 24-25 अंडरस्कोर वर्जन 1.5 8 MB की फाइल है। लिखा हुआ है दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। ग्रीन सेल्स आर फॉर डेटा एंट्री, रेड लेबल्स इंडिकेट मैंडेटरी फील्ड्स, Ctrl+X, Ctrl+V, कट कॉपी पेस्ट आप नहीं करेंगे। किसी शीट को आपको डिलीट नहीं करना। ये आपकी होम शीट है। होम शीट पर देखिए टोटल शीट्स 31। होम शीट के अलावा जिस भी शीट पर आपको जाना हो, आप यहाँ क्लिक करेंगे, उस शीट पर पहुंच जाएंगे। जनरल है, शेड्यूल एस फॉर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, ये कैपिटल गेन का है 112A वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, अदर सोर्सेज है, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड का है, कैरी फॉरवर्ड है, ATG का शेड्यूल डोनेशंस वाला, उसमें आपको डाटा फीड करना पड़ेगा। ATD मेडिकल इंश्योरेंस,
ATGGA ये साइंटिफिक रिसर्च का होता है। चैप्टर 6A ATC से लेकर ATU तक के डिडक्शंस। ATU ये फिजिकली हैंडीकैप्ड का। पॉलिटिकल डोनेशंस ATGGC स्पेशल इनकम का पता लग जाएगा आपको। इसी तरीके से एक्सेंटेड इनकम और एसेट्स लायबिलिटीज। यदि आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तब आपको अपना शेड्यूल भरना होता है। आपको आपकी बिल्डिंग कितनी है, लैंड कितनी है, ज्वेलरी कितनी है, कार कितनी है, कोई ड्राइंग्स हैं, कोई कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, डिपॉजिट्स है, वो आपको सब दिखाना होगा। यहाँ पर है जनरल शीट और हर शीट पर आप देखिए वैलिडेट आपको करना होगा। टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे लास्ट वाली शीट पर। जब कैलकुलेशन जब वो टैक्स वाली शीट है, इस शीट पर जब आपको टैक्स कैलकुलेट करेंगे हम TTA वाली शीट पर, कंपोजिशन ऑफ टोटल इनकम। ये देखिए यहाँ पर आपको वैलिडेट का भी ऑप्शन मिलेगा और टैक्स कैलकुलेट करेंगे और यहीं से होगा जनरेट JS1। अब मैं आपको जो हम क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये बुक है डॉक्टर VK सिंघानिया की। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल केस के लिए इसके अलावा और तो बुक हमारे पास नहीं है। इसमें 14 केस स्टडीज हैं और आज हम ले रहे हैं पहली केस स्टडी। ये निशांत ने आपको पहले शेयर कर रखी है। हम पूरा डाटा एक एक जो शीट्स है उसमें फीड करेंगे। नाम है एसएससी का रमन कुमार मेहता। पैन नंबर दे रखा है, फादर नेम दिया हुआ है और आधार नंबर भी दे रखा है। डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, रेंशियल स्टेटस पूछेगा आपसे कि रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है। रिटर्न आपकी ओरिजिनल है या बिलेटेड है, वो आपको सेक्शन मिलेगा। एम्प्लॉयर का नाम, एम्प्लॉयर का पैन नंबर, एम्प्लॉयर का टैन नंबर। पैन नहीं होगा काम चल जाएगा, लेकिन टैक्स काटा है तो टैन नंबर इज मैंडेटरी। डायरेक्टर किसी कंपनी में है, नो। शेयर होल्डिंग वो भी आपको फिल करना होगा। बैंक अकाउंट 1 इज मैंडेटरी। फिर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी की डिटेल्स। 50 लाख से ऊपर सैलरी होते के साथ ही आप आइटम 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। बेसिक सैलरी है, टीए है, लंच अलाउंस है, HRA है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, लीव सैलरी, कन्वेंस, लीव ट्रेवल कंसेशन, LTC, म्युनिसिपल टैक्स। हाउस प्रॉपर्टी आपकी है, म्युनिसिपल टैक्स का कोई आपको रिबेट नहीं मिलता। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ओल्ड रिजीम के अंदर मिलेगा आपको मैक्सिमम 2 लाख, न्यू रिजीम के अंदर आपको नहीं मिलेगा। न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम पहले ही आपको सिलेक्ट करना होगा। सेविंग बैंक इंटरेस्ट आपको दे रखा है। इनकम टैक्स का रिफंड जो मिलता है उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिला, वो भी टैक्सेबल होगा। और आपका FDR का इंटरेस्ट 10% TDS कट गया, 10% TDS कट गया तो ग्रॉस इनकम हम लेंगे TDS को ऐड करके, हम ग्रॉस इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा, उसका टैन नंबर लिखा हुआ है। बैंक ने 10 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया FDR पर, 1 लाख रुपए TDS काट लिया, वो आ गया आपका। आपने टैक्स चुकाया 12 सितंबर को, जो कि आपका एडवांस टैक्स है। 30 अप्रैल को पे किया, वो आपका सेल्फ असेसमेंट, लेकिन शेड्यूल एक ही है। इसमें क्योंकि इनकम 50 लाख से ऊपर है तो आपको शेड्यूल ऑफ लायबिलिटीज फिल करना है। ज्वेलरी की कीमत 8,90,000 जो आपने खरीदी, मार्केट वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। जो आपने खरीदा वो आप लेते हैं परचेज कॉस्ट, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू। यदि आपने वेल्थ टैक्स रिटर्न भर रखी है तो उसमें जो वैल्यू भरी थी वो आपकी आएगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी 8,10,000 की, वो आप लिखेंगे। मार्केट वैल्यू से उसका कोई मतलब नहीं होगा। प्लॉट लैंड एड्रेस रखा है, 2 लाख के अपने खरीदा, मार्केट वैल्यू उसकी 8 करोड़, कोई मतलब नहीं। और कैश इन हैंड 42,000। ये हम शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज वाले सेक्शन में इसको फीड करेंगे। देखिए 14 के स्टडीज हैं जो मैंने भी आपको बताया। रमन कुमार मेहता की आज हम केस स्टडी ले रहे हैं और बाकी 14 और भी है। शुरू की केस स्टडीज में कैपिटल गेन नहीं है। पहली केस स्टडी, दूसरी, तीसरी, चौथी में कैपिटल गेन का नहीं है, बाद में कैपिटल गेन शुरू हो जाता है। ये पहली केस स्टडी जो मैंने भी आपको दिखाई, उसकी टैक्स कैलकुलेशंस, सैलरी है, कन्वेंस अलाउंस है, HRA है, इन सबको मिलाकर जो आपका अमाउंट बना वो आएगा आपका बेसिक सैलरी और अलाउंसेस के टोटल में अपने आप वहां पर आ जाएगा। हम लिखेंगे अलग अलग, लेकिन आ जाएगा 1,73,51,600।
लीव ट्रेवल कंसेशन ये प्रपोजल्स में लिखा जाएगा, टोटल आ जाएगा ग्रॉस ये, और एग्जाम्प्ट अलाउंस में हम लिखेंगे कन्वेंस का 8,000 और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ओल्ड रिजीम की हम बात कर रहे हैं, न्यू रिजीम की बात नहीं कर रहे, 2,400 और लीव ट्रेवल कंसेशन 52,000, 62,400 आएगा आपका एग्जाम्प्ट अलाउंस। 50,000 स्टैंडर्ड अपने आप निकलेगी। हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट ओल्ड के अंदर आपको मिलेगा 2 लाख का, ये आपका अदर सोर्सेज में सेम बैंक इंटरेस्ट, रिफंड पर इंटरेस्ट, एफडीआर का इंटरेस्ट, अदर सोर्सेज का टोटल, जीटीआई का टोटल हो गया 1,81,43,720, एटीसी की डिडक्शंस, एटीसी 1B की, एटीडी की, ये 2,47,500 आएंगे। अभी हम जब शीट पर करेंगे एक्सेल में तो ये सारी कैलकुलेशंस अपने आप ऑटोमेटिक होंगी। ये आपकी आ गई टोटल इनकम टैक्सेबल, इस पर टैक्स निकला और टैक्स बन गया आपका 51,78,000 और 15% सरचार्ज, जो टैक्स पर टैक्स की बात हो रही थी 59, 55, 121, इस पर एजुकेशन सेस 4%, टोटल टैक्स आ गया 6193। हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को 234 ABC की कैलकुलेशन नहीं करवाते, और फिर आज हम लेट फीस तो लगेगी, 234 ABC भी लगेगा, लेकिन हमें वहां पर ऑप्शन मिलता है, हम वहां से उसको हटा सकते हैं, तो हम हटा देते हैं। टोटल एडवांस टैक्स 40,000, सेल्फ असेसमेंट, TDS बाय द एम्प्लॉयर, TDS बाय द बैंक 2,81,000 रुपए का नेट पेपर वहां पर आ जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक आप पूरा टैक्स नहीं देते आपको रिटर्न अपलोड नहीं करनी चाहिए। न्यू रिजीम के अंदर ये आपको डिडक्शंस कोई नहीं मिलने वाली, सिर्फ मिलेगी कन्वेंस अलाउंस की, क्योंकि ऑफिशियल खर्च किया गया, सेक्शन 14(1) की 8,000। ग्रॉस इनकम वही रहेगी, स्टैंडर्ड मिलेगी, ये सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी की डिडक्शंस आपको नहीं मिली यहां पर। अदर सोर्स इनकम वही, कोई डिडक्शंस नहीं मिल रही चैप्टर 6A की, ATC से लेकर ATU तक की, और टैक्स बन गया इसमें 52,19,000, सरचार्ज लगेगा, एजुकेशन सेस लगेगा, और इसमें टैक्स लिमिट आ गई इनकी 3,30,350, जो कि रिमेनिंग है, जबकि इसमें आ रही थी 2,81,220। लेकिन आज की डेट में आप ITR 2 इनकी अपलोड नहीं कर सकते प्रैक्टिकल लाइफ में। आज की डेट में यदि आप इंटर नहीं भरी तो आपको न्यू रिजीम ही चूज करना होगा। जय निशान आप बताएं, इसके बाद हम प्रैक्टिकल फिर अपना शुरू करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग तो वही आपका हो गया ना, फॉरवर्ड ट्रांजेक्शंस। यदि आपने बिना डिलीवरी के शेयर्स आपने आज खरीदे और आज ही बेच दिए, आप इंट्राडे कर रहे हैं, या फॉरवर्ड जो 3 महीने के बाद का जो प्रोजेक्ट होता है कि आपने आज खरीदा, फिर वो अपने जो आपने दूसरे तरह की उसको बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रांजेक्शंस, तो उसका भी आपका बिजनेस प्रोफेशन की इनकम माना जाएगा। आपको ITR 3 फाइल करना है, उसमें ITR 2 नहीं होगा। लेकिन उसमें टर्नओवर जो है, टर्नओवर की डेफिनेशन में दूसरी हो जाती है। उसमें ऑडिट के लिए टर्नओवर वो नहीं आएगी कि आप टोटल परचेज टोटल सेल मानेंगे, वो नहीं आएगी। यदि आपने 50 करोड़ का सामान आज बेचा और 51 का खरीदा, तो आपकी जो रिपोर्टिंग जो होगी वो आप वहां पर नेट गेन नहीं लेंगे, वहां पर होती है कि आपके टोटल टर्नओवर कितने की है, उसके हिसाब से ऑडिट होता है। तो फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स के लिए भी या आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी आपको ITR 3 ही फाइल करना है, आप ITR 2 फाइल नहीं कर पाएंगे। हाँ बताएं, नहीं रिवाइज तो आप कर ही सकते हैं, रिवाइज तो 31 दिसंबर 2024 तक कर ही सकते हैं ना। यदि कोई मिस्टेक कर दिया इसलिए तो रिवाइज का प्रोविजन है। रिवाइज का मतलब ही होता है कि आपसे कोई गलती हो गई है तो आप रिवाइज कर रहे हैं उसको। हाँ निशान बताओ, आप ब्रेक लेना चाहो तो 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो आप। ब्रेक, चलिए 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, फिर कोई बात नहीं। कुछ लोगों को बीच में कुछ हाँ 5 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं फिर। निशांत हम शुरू कर रहे हैं। ये वेबसाइट है हमारी taxclasses.in, इस पर है सेमेस्टर 5
ऑनर्स एंड प्रोग्राम। इस पर सारी केस स्टडीज हमने अपलोड कर रखी हैं, उनकी टैक्स की कैलकुलेशंस, फील्ड एक्सेल वर्कबुक और जेएसओन फाइल। केस स्टडी 14 न्यू टैक्स रेट रिजीम, उसका एसएससी का नाम और असेसमेंट ईयर। केस स्टडी 14 ओल्ड टैक्स रेट रिजीम, एसएससी का नाम और असेसमेंट ईयर। और आज हम कर रहे हैं केस 1, केस स्टडी 1 ओल्ड टैक्स रेट रिजीम, रमन कुमार मेहता, टैक्स कैलकुलेशंस, फील्ड एक्सेल वर्कबुक, जेएसओन और ब्लैंक आईटीआर 2। इसी तरीके से न्यू टैक्स रेट रिजीम के लिए टैक्स कैलकुलेशन डिफरेंट हो गई, जो मैंने भी आपको दिखाई। फील्ड एक्सेल वर्कबुक, उसकी जेएसओन और ब्लैंक आईटीआर 2 वो कॉमन है जो हमने वेबसाइट से डाउनलोड की। तो इसको आप डाउनलोड कर लें, ये देखिए डाउनलोड हो जाती है यहाँ पर और ये खुल जाएगी। इसके बाद ये फील्ड एक्सेल वर्कबुक, ये कुछ टाइम लगाएगी, 9 MB की फाइल है। यदि आपको खुलने में दिक्कत होती है, आपको यहाँ राइट क्लिक करना है और यहाँ पर करना है इसको। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आपको यहाँ अनब्लॉक करेंगे आप उसको, ये फिर आपको खुल जाएगी। वहां पर आपको उसको अनब्लॉक करना होगा और ये आपकी कैलकुलेशंस, ये मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दी है कैलकुलेशंस। और ये एक्सेल की वर्कबुक भी, ये ITR 2 का जनरल शीट। यहां पर लिखा हमने रमन के सरनेम। आप देख रहे हैं कि मैंडेटरी फील्ड जो हैं रेड वाले वो फिल करने मैंडेटरी है, रमन के मेहता। और यहां पर लिखा पैन नंबर, एड्रेस में रेड वाले मैंडेटरी हैं, 94A 117 मराठवाला स्ट्रीट। यहां पर ड्रॉप डाउन से आपको सिलेक्ट करना है, इंडिविजुअल एचसीएफ में से एक सिलेक्ट करना है आपको। हमने कर दिया इंडिविजुअल, रोड लिख दिया, एरिया कर दिया और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में DD/मंथ/ईयर और YY। टाउन लिख दिया पूना। और यहां स्टेट में आपको ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा, ये देखिए यहां पर ड्रॉप डाउन है और महाराष्ट्र 90 नंबर पर है। इंडिया अपने आप आ जाएगा और पिन कोड। आपने ईमेल लिख दिया, ईमेल हमने दूसरा अपना लिख लिया, मोबाइल नंबर लिख दिया और मोबाइल नंबर एक और लिख दिया। यहां पर देखिए आपको फाइल अंडर सेक्शन, यहां पर आपको ड्रॉप डाउन करके आपको मिल रहा है ऑन और बिफोर ड्यू डेट, आफ्टर ड्यू डेट, रिवाइज, मॉडिफाइड, कंडोनेशन ऑफ डिले। हम दिखाना चाह रहे हैं कि हमने जो रिटर्न में जो क्वेश्चंस में लिखा है 22 जुलाई, हमने तभी रिटर्न फाइल की है। हमने चूज कर लिया ऑन और बिफोर ड्यू डेट। प्रैक्टिकल लाइफ में आप ये चूज नहीं कर सकते क्योंकि आज हो गई है आपकी 21 सितंबर। ऑन और बिफोर ड्यू डेट कर लिया। यहां पर आपको ड्रॉप डाउन में देखिए, यहां आपको रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, हमने सिलेक्ट किया रेजिडेंट। ये जब भी कोई आप डाटा फिट करेंगे थोड़ा सा सिस्टम टाइम आपका लेगा। यदि आप रिटर्न करते हैं रिवाइज तो यहाँ पर ओरिजिनल का आपको नंबर देना होता है। हम ओरिजिनल फाइल कर रहे हैं इसलिए ये आपके जो सेल्स हैं ये आपके ग्रे हो गए हैं। कंडीशंस फॉर रेंशियल स्टेटस, यहाँ ड्रॉप डाउन और यहाँ लिखा हुआ है पहली कंडीशन, यू वर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दूसरी कंडीशन, यू वर इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज ड्यूरिंग लास्ट 4 years प्रीसीडिंग टू द प्रीवियस ईयर। आपको इसमें से एक चूज करना है। हमने चूज कर लिया 182 डेज और मोर, जैसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन? यदि आप यहां पर चूज करते हैं, अभी इस साल न्यू रिजीम बाय डिफॉल्ट था, यदि आप ओल्ड रिजीम चूज कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा यस। यहां लिखा हुआ है बाय सिलेक्टिंग यस ऑप्शंस योर इनकम एंड टैक्स कंप्यूटेशन शैल बी एज पर ओल्ड टैक्स रेट रिजीम। और यदि आप चूज करते हैं नो तो लिखा हुआ है बाय सिलेक्टिंग नो ऑप्शन, बाय सिलेक्टिंग नो ऑप्शन योर इनकम एंड टैक्स कंप्यूटेशन शैल बी एज पर द न्यू टैक्स रेट रिजीम। हम कर रहे हैं ओल्ड टैक्स रेट रिजीम, हमने कर दिया इसको यस। आर यू फाइल रिटर्न इनकम अंडर 7th प्रोविजो, जो मैंने आपको बिजली के बिल की बात की थी, जो मैंने आपको फॉरेन ट्रेवल की बात की थी। हैव यू डिपॉजिटेड
अमाउंट ऑफ एग्रीगेट अमाउंट 1 करोड़ और मोर करंट अकाउंट में, हैव इनकर्ड एक्सपेंडिचर फॉर एक्सीडिंग 2 लाख फॉर फॉरेन ट्रेवल, हैव इनकर्ड एक्सपेंडिचर 1 लाख और मोर ऑन इलेक्ट्रिसिटी। यदि आपने इसको नो कर दिया तो ये आपका ग्रे हो गए, यदि आप इसको कर देते हैं यस तो ये आपके फिर ग्रीन हो जाएंगे, फिर आपको सिलेक्ट करना होगा। हमने इसको कर दिया नो, हमारी वैसे इनकम ज्यादा है। आधार नंबर, हम यदि हमें आधार नंबर दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो हम यहां पर नीचे वाले में आधार एनरोलमेंट आईडी लिख दें तो काम चल जाएगा। ये देखिए हमने इसको किया वैलिडेट। अभी इस डिडक्टर की बात की है, जो भी कमी होगी वो आपको बताता रहेगा। प्लीज सिलेक्ट द ड्रॉप डाउन फॉर फील्ड वेदर यू आर डायरेक्टर इन कंपनी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहां पर हमने किया इसको नो और इसको किया फिर वैलिडेट। ये प्रैक्टिकल लाइफ में विदाउट आधार काम आपका नहीं चलेगा। हमने इसमें नंबर लिख दिया 5752575 और डू वांट टू क्लेम बेनिफिट, इसको नो करना है। एफपीआई को भी नो करना है। रिटर्न हम खुद फाइल कर रहे हैं या कोई रिप्रेजेंटेटिव, उसको भी मैंने नो कर दिया। यदि हम यस कर देंगे तो यहाँ पर नाम खुल जाएगा, ये आपका ग्रे हट जाएगा और ग्रीन आ जाएगा। फिर आपको नाम लिखना होगा कि कौन फाइल कर रहा है। यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो यहाँ आपको यस करना है और आपको फीड करना पड़ेगा डाटा। इस तरीके से अनलिस्टेड का हो गया और इसको हमने शीट को कर दिया वैलिडेट। इसके बाद शेड्यूल एस की शीट, हमने एम्प्लॉयर का नाम लिख दिया, अमर कंसल्टेंट। नेम ऑफ एम्प्लॉयर में आपको देखिए ड्रॉप डाउन में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, पेंशनर। मैंने आपको बताया था कि पेंशन की इनकम भी यहीं आती है। पेंशनर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, वो आते हैं सीजी पेंशनर के अंदर या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर यदि आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं। ये है अदर्स में। हमने इसका टेम्बर लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, ड्रॉप डाउन से महाराष्ट्र उठा लिया। ये देखिए ड्रॉप डाउन है, ये पूना लिख दिया, पिन कोड लिख दिया और यहां पर हमने अमाउंट भरा बेसिक सैलरी। यहां पर आपको ड्रॉप डाउन से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। देखिए कन्वेंस, एचआरए, लीव ट्रेवल, चिल्ड्रन कैश अलाउंस, जो भी आपको फील्ड भरना है वो आपको सेलेक्ट हमने किया। बेसिक सैलरी, कन्वेंस, एचआरए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। अदर अलाउंसेस, लीव एनकैशमेंट, अमाउंट हो गया ऑटोमेटिकली इन सबका टोटल। और ये आपका परक्विजिट्स जो आपका एलटीसी लिखा होता है 58,000, वो यहां पर बिल में अपने आप आ जाएगा। ये टोटल अपने आप यहां पर आ जाएगा, इसको भरने की जरूरत नहीं है आपको। यदि मान लीजिए इसको मैंने खत्म कर दिया तो देखिए टोटल अपने आप चेंज हो गया। यहां पर था हमारा 34,000, टोटल अपने आप होते हैं ब्लू वाले। ये 58 लिख दिया और कुछ नीचे नहीं है। स्टैंडर्ड एक्शन यदि 2 एम्प्लॉयर हैं तो आप दूसरे एम्प्लॉयर का फिर नाम एड्रेस लिखेंगे। एक साल में दो से ज्यादा एम्प्लॉयर हो सकते हैं, उसमें आप एडिशन करते रहिए। और यहां पर आपका एग्जाम्पल अलाउंस जो आपके ओल्ड स्कीम के अंदर है, बाकी न्यू स्कीम के अंदर सेक्शन 1014(1) का ही आएगा। लीव ट्रेवल आपको अलाउड होता है ओल्ड स्कीम के अंदर 52,000, ये 1014(1) का 8,000 और ये 1014(2) का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का 2,400। टोटल अपने आप हो गया 62,400 और अपने आप नेट फिगर आ गई 70,40,000, 1,74,09,600 आफ्टर स्टैंडर्ड एक्शंस ऑफ 50,000। स्टैंडर्ड एक्शंस भी यहां पर अपने आप इंसर्ट कर जाएगी। आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ये 50,000 अपने आप आ गया। तो ये है सैलरी का शेड्यूल। इसमें आपने लिखा नाम, एड्रेस, 10 नंबर, पिन कोड, बेसिक सैलरी, एचआरए, कन्वेंस अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अदर अलाउंस, लीव एनकैशमेंट, इन सब का टोटल अपने आप आ गया। परक्विजिट्स का अमाउंट लिख दिया, उसका टोटल अपने आप आ गया। जो आपके एग्जम्प्टेड अलाउंस थे वो हमने 3 कैटेगरी में लिख दिए, एक एलटीसी का, एक 1014(1) का, एक 1014(2) का। और नेट अमाउंट आ गया 174,09,600 और यही हमारा इसका टोटल है। लास्ट में अमाउंट आ गया 1,72,97,200 नेट अमाउंट और यही हमारा इसका है। ये देखिए
टोटल 173,51,600 जो टोटल आपकी बेसिक सैलरी और बाकी अलग अलाउंसेस का टोटल था। 58 परक्विजिट्स का ऐड हो गया, 62,500 एग्जम्प्टेड माइनस हो गया और 50,000 का स्टैंडर्ड इनकम चार्जेबल अंडर द एट सैलरी 172,97,200। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी में हमने एड्रेस लिख दिया 94A117 मराठवाड़ा स्ट्रीट पुणे और यहां पर ड्रॉप डाउन महाराष्ट्र, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया। यहां इसको आपने करना सेल्फ। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी आपने किया सेल्फ, ये ऑनर खुद ही ऑनर है, किसके साथ ज्वाइंट एक्सेट्रा नहीं है। इज द प्रॉपर्टी कौन नो लिखा हुआ है, यदि आप इसको कर देंगे यस तो यहां पर फिर वो आपसे पूछेगा नेम ऑफ ऑनर कौन है, उनका परसेंटेज कितना है, उनका आधार नंबर कितना है। हमने इसमें किया नो और ये ग्रे हो गया। प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्युपाइड, यहां आपको फिर ड्रॉप डाउन मिल रहा है लेट आउट और डिम्ड लेट आउट। जो मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी लेट आउट है या डिम्ड लेट आउट है। डिम्ड लेट आउट मतलब आपने किराए पर दी नहीं है लेकिन माना जाएगा कि आपको किराए की इनकम हो रही है। और यहां पर आपको मिला सिर्फ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन और वो मैक्सिमम 2 लाख। यहां 2 लाख से ज्यादा लिख ही नहीं सकते आप, 2 लाख से ज्यादा आपको अलाउड ही नहीं करेगा ये। मैंने किया 275, उसने मना कर दिया। इन केस ऑफ एसओपी इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल कैन नॉट एक्सीड 2 लाख और इसको भी कर दिया मैंने वैलिडेट। कैपिटल गेन का हमारे पास कोई कॉलम नहीं है। अदर सोर्सेस में सेविंग बैंक इंटरेस्ट 37,410, एफडीआर का इंटरेस्ट हमारा 9 लाख था, टीडीएस के बाद हमने इसको ग्रॉसअप कर दिया, अमाउंट हो गया 10 लाख और इनकम टैक्स के रिफंड पर इंटरेस्ट मिला 9,110 रुपीज। ये आपको लिखना जरूरी है, इस पर किसी तरह की हेराफेरी ना करें नहीं तो वहां से नोटिस आ जाएगा। इनकम टैक्स ने जो आपको रिफंड दिया था लास्ट ईयर उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, दिस इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। टोटल अपने आप हो गया 10,46,520। यदि आपकी कोई गिफ्ट होती है अदर देन रिलेटिव तो फिर आप यहां पर लिखेंगे एग्रीगेट वैल्यू ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम विदाउट कंसिडरेशन। यदि आपको कैश से मिलता है, चेक से मिलता है, यदि आपको अपने किसी व्यक्ति से, किसी रिलेटिव से, नॉन रिलेटिव से यदि आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है, कोई गोल्ड मिलता है, कोई लैंड प्रॉपर्टी मिलती है, क्या विदाउट कंसिडरेशन है या विद कंसिडरेशन है, इनएडुकेट है तो उसका कॉलम अलग है और फ्री है तो उसका अलग है। यहां पर 5 कैटेगरी है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, इन केस ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, इन एडुकेट कंसिडरेशन। इन एडुकेट का मतलब आपको 40 लाख की चीज आपको 20 लाख के अंदर मिल गई, 20 लाख की चीज आपको 5 लाख के अंदर मिली, तब इट इज कॉल्ड इन एडुकेट कंसिडरेशन। फैमिली पेंशन आपकी यहां पर आएगी और फैमिली पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपको लिखनी है। इसके बाद ये आपका मेडिकल एक्सपेंडिचर का है और मेडिकल इंश्योरेंस का है। यहां इंडिविजुअल का केस था, इसमें इसने अमाउंट दिया 16,000 अपने लिए, यहां आपने अमाउंट लिख दिया। मैक्सिमम अलाउड 25, पेरेंट्स का मैक्सिमम 50 होगा अलाउड। सीनियर सिटीजन के केस में इफ यू आर इंडिविजुअल यू एंड एनी ऑफ फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन, नो वेदर एनी वन ऑफ पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन, यहां पर हमको लिखना होगा यस। यदि पेरेंट्स नॉन सीनियर है तब भी वहां पर 25 अलाउड होगा, फिर आपका 41 अलाउड नहीं होगा। ये आपकी एटीसी में आपका अमाउंट यदि आप 150 से ज्यादा भी लिखेंगे तब भी वो 150 ही लगा। मैंने लिखा 178, देखिए तभी 140 मिलेगा। एटीसी की लिमिट है, ये सिस्टम अपने आप किया हुआ है, इसमें सब जगह फार्मूले पड़े हुए हैं। 80C3(1)B मैक्सिमम 50 अलाउड है, आपने 40 लिया, 40 मिल गया। मैंने इसको किया 60, देखिए मिलेगा 50। इसकी मैक्सिमम लिमिट 50 है, हमारे केस में इट इज 40। ये मेडिकल इंश्योरेंस 80D की शीट से अपने आप आया ऑटोमेटिकली। 80TTA नॉन सीनियर सिटीजन के केस में 10,000 लिमिट, मैंने इसमें किया इसको 8,000, तो 8,000 ही मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट
इज 10,000। यदि आपका कम है तो आपको कम मिलेगा। यह हमने कर दिया 37,910। ये भी शीट ओके हो गई। और इसको शिफ्ट करने के लिए ये 80DD है, इसको नहीं करना। जब भी किसी शीट को क्लिक करेंगे सिस्टम टाइम लेगा। इसमें डिफरेंट मैक्रोज लगे हुए हैं, फॉर्मूले लगे हुए हैं। ये कैलकुलेट और रिकैलकुलेट करता है उस टाइम। ये स्पेशल इनकम का आ जाएगा यहाँ पर। ये एग्जम्प्ट इनकम का है, हमारे केस में कोई नहीं है। ये एसेट्स लायबिलिटीज का शेड्यूल। 50 लाख से ऊपर इनकम होगी तो आपको भरना मैंडेटरी है। लिखा हुआ एसेट्स लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर इन केस टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख। रेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हमने एड्रेस लिख दिया। ड्रॉप डाउन से हमने स्टेट निकाल लिया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया और उसके लिख दी वैल्यू। इसी तरीके से लैंड का लिख दिया हमने। यहां भी ड्रॉप डाउन से उठाया। ज्वेलरी 8,90,000, 42,000 का कैश और इसको कर दिया वैलिडेट। यहां पर है लायबिलिटी इन रिलेशन टू एसेट सी। यदि आपने जो प्रॉपर्टी यहां पर मेंशन है उसको खरीदने के लिए कोई आपने लोन लिया फिर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आईटी, इसमें आपका इनकम टैक्स, जैसे मैंने आपको बताया एडवांस टैक्स, सर्विसमेंट टैक्स यहीं पर ही आएगा। हमने बीएसआर कोड लिख दिया। डेट ऑफ डिपॉजिट DD, MM, YY, सीरियल नंबर ऑफ चालान और अमाउंट। एडवांस टैक्स था तभी इसी शेड्यूल के अंदर है। सेल्फ असेसमेंट तभी इसी शेड्यूल के अंदर है। बीएसआर कोड 7 न्यूमेरिकल DD, MM, YY और चालान नंबर और अमाउंट। इसको किया वैलिडेट। टीडीएस इसको यस कर दिया। यहां पर यदि आपका टैक्स काटता है एम्प्लॉयर तो फॉर्म होता है 16। यदि काटता है अदर देन एम्प्लॉयर तो फॉर्म होता है 16A। हमने एम्प्लॉयर का 10 लिख दिया। RTKA अमर कंसल्टेंट। सैलरी हमने वो लिखी है जो स्टैंडर्ड एक्शन से पहले की है। ग्रॉस सैलरी लिखी है। एग्जम्प्टेड अलाउंस से भी पहले की 1,74,09,600, क्योंकि ये फॉर्म 26 से मैच करेगी। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप आइटर फाइल करें तो आपको अपना फॉर्म 26A, आपका फॉर्म 16, 16A, टेस्ट, AIS सब देखकर आपको अपनी आइटम फाइल करनी चाहिए। ये आपका टोटल टैक्स बाय द एक्टर। ये आपका जो बैंक ने काटा। यहाँ आपको फिर 2 ऑप्शन मिलेंगे, सेल्फ या अदर पर्सन। हमने कर दिया सेल्फ। ये 10 वर्ड जो यस बैंक ने काटा। डायरेक्टेड इन ओन हैंड्स 1 लाख रुपए काटा उसने। हमने पूरा का पूरा 1 लाख क्लेम किया और यहां पर लिखना है आपको ग्रॉस अमाउंट और किस हेड के अंदर वो इनकम टैक्सेबल दिखाई। हमने दिखाई है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये देखिए, इनकम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, एग्जम्प्ट इनकम, नॉट एप्लीकेबल। ये हमने जो इनकम दिखाई है जिस पर 1 लाख रुपए टीडीएस कटा है वो इनकम टैक्सेबल है अदर हेड्स के अंदर। ये इसमें आपको नीचे लिखना होगा बैंक का IFSC कोड, नेम ऑफ द बैंक अपने आप आ जाएगा। ये देखिए, मैंने इसको यहां से हटा दिया, इसको किया वैलिडेट। ये कहता है IFSC कोड इज मैंडेटरी, बैंक काउंट ट्रेस, यस, बी, 4 अल्फा, फिर 0 और इसमें है 000 और 8। जैसे मैंने एंटर किया बैंक का नाम अपने आप आ गया। अकाउंट नंबर लिख दिया और यहां पर ड्रॉप डाउन से करना है आपने बैंक, क्या वो सेविंग बैंक अकाउंट है या करंट अकाउंट, और यहां पर आपको करना होगा नो लास्ट में। आप देखिए ये इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई। हाउस प्रॉपर्टी का बीच में -2 लाख आ गया। ये अदर सोर्सेस की आ गई। टोटल अपने आप आ गया और हमने किया इसको कैलकुलेट टैक्स। सिस्टम अपने आप टैक्स निकालता है। ये देखिए 234A का इंटरेस्ट लग गया। आज सितंबर का महीना है। 234B का इंटरेस्ट लग गया। 234C का इंटरेस्ट लग गया और लग गई लेट फीस। हम अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, टीचर्स को कहते हैं आज बच्चे मेरा लेक्चर देख रहे हैं सितंबर में, इंटरेस्ट की फिगर दूसरी आएंगी। जब आप क्वेश्चंस करेंगे इनको नवंबर के अंदर तो इंटरेस्ट की फिगर दूसरी आएगी। तो इसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है इसको रिमूव करने की। इसलिए जो भी मेरी वेबसाइट पर क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हमने 234ABC को हटा दिया है, हमने 234F को भी हटा दिया है और अमाउंट आ गया 28130 और यही हमारी कैलकुलेशन कहती थी।
281.230 और इसके बाद हम करेंगे जनरेट JS1 जो कंप्यूट सेटअप ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें सीवाइल का केस नहीं था, हमने इसको ओके कर दिया, इसको भी ओके कर दिया, ये भी हमने कर दिया। प्लीज एंश्योर टैक्सेस आर पेड बिफोर द सबमिशन ऑफ द रिटर्न। यदि आप रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्स पूरा नहीं चुकाते वो आपकी डिफेक्टिव रिटर्न कहलाएगी। ये हम एकेडमिकली कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अदरवाइज आपको प्रैक्टिकल लाइफ में टैक्स चुकाने के बाद ही रिटर्न को अपलोड करना चाहिए। यस, क्लिक ऑन टू सेव, ओके। और एक समरी की शीट लास्ट में आ गई वेरिफिकेशन के बाद। ये देखिए वेरिफिकेशंस में हमने नाम लिख दिया, फादर सेम लिखा, यहाँ ड्रॉप डाउन से उठाना है सेल्फ। वेरिफिकेशन के बाद वो समरी की शीट थी, एक बार फिर जनरेट करना पड़ेगा हमें JSON, ओके ओके, सेव JSON। ये जहां पर आपकी एक्सेल की यूटिलिटी है वहीं पर आपकी JSON सेव होगी। फाइल सेव डेस्कटॉप पर है, ओके। ये देखिए ये आ गई, दिस इज कॉल्ड JSON। इसको ने ओपन किया, ये आपकी शीट, यही आपकी अपलोड होती है। ये देखिए नेम, एड्रेस, पैन नंबर, टैन नंबर, सब कुछ इसमें है। ये कंप्यूटर लैंग्वेज में है, यही जाकर अपलोड होगी। ये देखिए देशबंधु गुप्ता रोड, कोराल बाग, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हाउस प्रॉपर्टी, मराठवाड़ा स्ट्रीट, प्लॉट ऑफ लैंड, यही आपको अपलोड करनी होगी अपने पोर्टल। मैं आपको अपना पोर्टल भी चेक करा देता हूं। ये ई फाइलिंग का पोर्टल, ये लॉगिन, मैंने अपना पैन नंबर डाल दिया, इसको करना है क्लिक, पासवर्ड, और इसको किया कंटिन्यू। यहां पर आपकी ई फाइल जो मैंने आज तक रिटर्न फाइल की, व्यू फाइल रिटर्न्स, ये देखिए असेसमेंट ईयर 2024-25, डाउनलोड फॉर्म, डाउनलोड रिसीप्ट और डाउनलोड JSON। जो आपकी अभी मैंने JSON जनरेट की वही आपकी डाउनलोड यहां से हो जाएगी। और ये मेरा इंटीमेशन भी आ गया 2023, 24, 22, 23, 17, 18 और ये लास्ट जो इनकम टैक्स की रिटर्न्स है वो 12-13 से पहले की इनकम टैक्स वेबसाइट पर नहीं है। यदि मुझे फॉर्म 26 देखना है, इसमें मैंने क्लिक करना है, प्रोसीड, और यहाँ करना है आपको 5, यहाँ करना है HTML, व्यू और इसको एक्सपोर्ट। ये देखिए ये मेरा नाम श्याम बाबू राठौर, मेरा एड्रेस, इन्फोसिस ने मेरा टैक्स काटा, उसका 10 नंबर, इतना मुझे डिविडेंड दिया इन्फोसिस ने, और टोटल टैक्स काटा 10%, 214। DLF ने मेरे पास शेयर्स हैं, 194 डिविडेंड मुझे मिला 1200 रुपया, और कोई TDS नहीं कटा क्योंकि 5000 से ज्यादा होता तब टैक्स काटता। पंजाब बैंक में मेरी FDs, मेरे को इंटरेस्ट मिला 1,63,000 और टैक्स कटा मेरा 16,378। श्यामला कॉलेज मुझे पेंशन मिली 67,99,584। ये थोड़ी गलत हो गई थी, कॉलेज ने गलत इंटीमेट किया इसमें, ये 71 लाख है और टैक्स काटा मेरा 20,78,000। HDFC बैंक का इंटरेस्ट, सेक्शन 194A, रिलायंस इंडस्ट्रीज का डिविडेंड, स्टेट बैंक का डिविडेंड, भारत पेट्रोलियम का डिविडेंड, मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची उसका रिकॉर्ड आ गया यहां पर देखिए। मैंने एक साल प्रॉपर्टी बेची थी, अभी एक प्रॉपर्टी खरीदी, एक बेची, उस पर टैक्स कटा 1%। यदि आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो परचेजर आपका टैक्स काटता है यदि आपका प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा होती है। तो यह प्रॉपर्टी जॉइंट में थी, 118 हमारी वैल्यू, उसका आधा 59,000 वो टैक्स हमारे परचेजर ने काटा। ये मैं इंडिया से बाहर गया घूमने, उस पर 5% TDS कटा, इसको बोलते हैं TCS। इसका भी एक रेट मुझे मिला 5819। और यदि आपको AIS TIS देखना है, आप AIS पे क्लिक करें, प्रोसीड, यहां पर आपको AIS मिलेगा और ये TIS, टैक्स इंफॉर्मेशन समरी। यहां से आपको असेसमेंट ईयर चूज करें आप, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, पिछले 5 साल से रिकॉर्ड इनकम टैक्स के पास सारा आपके बारे में सब आपके पास डाटा है। आपने इसको क्लिक किया, डाउनलोड किया और इसका पासवर्ड है आपका पासवर्ड, आपका पेन नंबर विद डेट ऑफ बर्थ AAAPR0759H और डेट ऑफ बर्थ। ये देखिए ये 2024-25 का है जो अभी तक का रिकॉर्ड है।
इतनी मुझे पेंशन मिल गई, डिविडेंड मेरे को मिला और टैक्स कटा, और एक मैंने प्रॉपर्टी खरीदी 50%, 2 करोड़ 90 लाख की, उसका आधा। यदि मैं बैक पर जाऊं और इसको करूं 2023-24, इसको किया टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी और वही पासवर्ड, आपका यूजर पैन नंबर, ये देखिए इसमें पेंशन आ गई 71,03,000, डिविडेंड आ गया, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आ गया, डिपॉजिट का इंटरेस्ट आ गया, इनकम फ्रॉम अदर्स आ गई, एचडीएफसी का टैक्सेबल बॉन्ड का इंटरेस्ट है, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग आ गई, रिसीप्ट्स आ गया इमल प्रॉपर्टी का, और फॉरेन ट्रेवल आ गया, और बाकी मैंने जो एफडीज एटसेट्रा करवाई। इन चीजों को बिल्कुल आपने इग्नोर नहीं करना प्रैक्टिकल लाइफ में। ये देखिए श्यामला कॉलेज, ये आपका डिविडेंड, कंपनी का नाम भी आया हुआ है, कंपनी का टैन नंबर भी आया हुआ है, कंपनी का पैन नंबर भी आया हुआ है, ये इसमें ऑडिटेड में है। ये मेरे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, बैंक का अकाउंट नंबर आपको एआई के अंदर मिल जाएगा। सेंट्रल बैंक से मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, कॉटेक्स से कितना मिला, पीएसबी से कितना मिला, यूनियन से कितना मिला, और ये प्रॉपर्टी की सेल, परचेज एटसेट्रा। तो इनकम टैक्स फाइल करते टाइम आप किसी तरह का रिस्क ना लें, आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दें। एआईएस, टीआईएस, फॉर्म 26एस, फॉर्म 16, ये सब अपने सामने रखें, फिर आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए। और यदि आपने जो फॉर्म भरा था, इनकम टैक्स फॉर्म, फील्ड फॉर्म, ये देखिए ये मैंने 10 ही भरा था, जो डिस्कशन चल रहा था कि बाइफरकेशन 5 साल का अमाउंट मिलेगा तब क्या करेंगे, ये मेरा फॉर्म, ये इसको 10 ही बोलते हैं। जब आपको पिछले सालों की इनकम मिले तो उसको फिर आपने बाइफरकेट करना है, फॉर्म 10E फाइल होगा। 52,10,000 मेरी पेंशन के एरियर्स थे, और ये देखिए ये ईयर वाइज, मैं रिटायर हुआ 31 दिसंबर 2019 को, तो मुझे 2 महीने की पेंशन का एरियर्स यहाँ मिला 2,54,000, 20-21 का एरियर्स मिला, 21-22 का मिला, और 22-23 का मिला। ये इसके करने से जब मैंने रिलीफ लिया तो रिलीफ का मुझे फायदा हुआ 3,01,000 का। ये 10 ही कहलाते हैं। आपको आईटीआर फाइल जब करेंगे, जब बाइफरकेशन करेंगे, तो आपको 10 ही पहले अपलोड करना होगा, तब आपको रिटर्न फाइल करनी है। यदि आपने अपने अडल्ट बच्चे को जो कि 18 साल से ऊपर है, यदि कोई भी अमाउंट देता तो उसकी इनकम है। जैसे मैंने अपने केस में, जब हमारा बेटा सिद्धार्थ जो था, जब ये 18 साल का हो गया तो मैंने बहुत सारी अमाउंट इसके नाम में ट्रांसफर कर दिया। जो इसकी इंटरेस्ट इनकम आ रही थी वो इसके हाथ में टैक्सेबल थी, और हमने इसकी आईटीआर फाइल करनी शुरू कर दी थी जब ये 18 साल से क्रॉस कर गया था। तो फिर इसकी इनकम कहलाएगी, फिर क्लबिंग नहीं होगी। ये एक इनकम टैक्स बचाने का, इट इज कॉल्ड टैक्स इवेजन नहीं है, इट इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। आप अपनी मनी शिफ्ट कर सकते हैं, पैसा शिफ्ट कर सकते हैं। आपके मान लीजिए कोई बूढ़े पेरेंट्स है, उनका अपने अमाउंट शिफ्ट कर दिया 50 लाख, 50 लाख पे इंटरेस्ट आया 5 लाख रुपया, वो 5 लाख वैसे टैक्स फ्री है। यदि मेरी इनकम में ऐड होगा तो 5 लाख को मुझे 30% टैक्स देना पड़ता, 1.5 लाख रुपया। मैंने 50 लाख रुपए अपने फादर को दे दिए और वो टैक्स फ्री है, और 50 लाख उनको इंटरेस्ट मिला, सपोज करो 5 लाख, वो 5 लाख उनकी इनकम और कोई है नहीं, वो सारा का सारा टैक्स फ्री पैसा होगा उनके लिए। लेकिन मैंने उनकी आईटीआर फाइल कर दी। तो ये टैक्स सेविंग डिवाइसेस हैं, टैक्स सेविंग तरीके हैं, इसको कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस, नॉट टैक्स इवेजन। टैक्स की चोरी नहीं है, ये टैक्स की प्लानिंग है। वो आप खत्म हो गए हैं। अब एचएफ इतना लुक्रेटिव नहीं रहा कि आप सेपरेट उसकी एंटिटी बनाएं, और एचएफ की जो इनकम है वो आप अपने आप को उसमें सैलरी नहीं दिखा पाएंगे। सैलरी फ्रॉम एचएफ नहीं हो सकता, सैलरी फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म हो जाता है, सैलरी नॉट फ्रॉम एचएफ, कि एचएफ में सैलरी दिखाएं। वो स्क्रूटनी के लिए आप यू आर इनवाइटिंग स्क्रूटनी। इनकम टैक्स में टैक्स अवॉइडेंस उतना ही करें जितना पॉसिबल हो और जितने क्वेरी ना है। ये आप अननेसेसरी इंक्वायरी को इनवाइट कर रहे हैं। यस, हुज इनकम इज हायर। यदि मान लीजिए मेरे माइनर चाइल्ड को कोई पैसा मिल गया 40 लाख रुपए, उसके चाचा से, चाची से, उसके ताऊ से, और उस पर जो इनकम आ रही है उसको 4 लाख रुपए की, 3 लाख 20 हज़ार रुपए की, जो उसके पेरेंट्स हैं जिसकी इनकम हायर होगी उसकी इनकम टैक्स हो जाएगा, और उसको 1500 रुपये पर चाइल्ड की एग्जिबिशन मिलेगी सेक्शन 1032 के अंदर, अंडर ओल्ड रिजीम, नॉट अंडर न्यू रिजीम। इसमें माइनर में भी वो डीम्ड ऑनर जो है वो आपकी इनकम ही काउंट होगा फॉर ऑल पर्पसेस। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही काउंट होगा। माइनर की इनकम जो भी होगी, जिस भी हेड में होगी, यदि आपकी अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी,
और प्रॉपर्टी में तो प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी, और उसको डिडक्शंस उसी तरह से मान के मिलेंगी जैसे वो इनकम आपकी ही है, लेकिन एग्जीक्यूशन मिलेगी सिर्फ 1500 रुपये की, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। सेक्शन 1032 सिर्फ हमें अलाउ करता है 1500 रुपये की एग्जम्पशंस, उससे ज़्यादा नहीं, और हेड वैसे टैक्सेबल होगा जैसे आपका अपना हेड होता। तो जब आपने शेड्यूल भरा था, शेड्यूल में आपने देखा था इनकम फॉर माइनर आया था, उसमें सेल्फ आया था, माइनर आया था उसमें। ये देखिए, जो भी आपका बिजनेस इनकम है, जो टर्नओवर है, यदि आप प्रेजेंटिव इनकम लेते हैं तो 6% 8% है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से है, अदरवाइज आपका 8% है, 44AD है, बिजनेस प्रोफेशनल में 44AD ए है, और बाकी 44AE है ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में। उसमें जितने भी खर्चे आपके बिजनेस रिलेटेड हैं वो तो आपको मिलेंगे। जब भी टैक्स लगेगा वो आपकी नेट इनकम टैक्सेबल होता है। हाउ टू कैलकुलेट, आपकी ग्रॉस रिसिप्ट क्या है, आपके एक्सपेंडिचर क्या है, आपके कौन से अलाउबल एक्सपेंडिचर हैं, वो एज पर इनकम टैक्स लॉ जो भी है वही चालू होगा, और उसमें कौन कौन से एक्सपेंडिचर अलाउड है, कौन कौन से डिसअलाउड, कि 44AD में 8% जैसे है, या 6% है, या ADA के अंदर 50% हम माइनस कर देते हैं, लेकिन उसकी लिमिट है कि 50 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए, उसमें स्पेसिफिक प्रोफेशंस है। तो ऐसे कोई थंब रूल नहीं है कि बिजनेस इनकम सैलरी हेड की तरह बता दें कि उसमें 50,000 स्टैंडर्ड मिल जाएगी और बाकी एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे और आपका टैक्स लग जाएगा। ऐसे बिजनेस लॉसेस में इतना पॉसिबल कोई थंब रूल ऐसा चाहिए। You will have to wait for another. Okay, good. We conclude this one-day workshop on e-filing of income tax ITR to Excel utility. It's really valuable for all the participants. The time and efforts you have dedicated to make this workshop a great learning experience. To thank our respected principal, Sir Dr. Dinesh Kumar Sharma, for this workshop. A special thanks to all the participants who joined us today from the various parts of the country. Today will help them in their academic and professional endeavors. I would also like to of the workshop for seamless coordination and ensuring once again for being a part of this workshop. We look forward to your participation in future events. Thank you. थैंक यू वेरी मच निशांत, बहुत अच्छे ढंग से तुमने ऑर्गेनाइज किया। इतना यूनिवर्सिटी के जब कॉलेजेस भी करते हैं तब भी इतना पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता। रेस्पॉन्स तुम्हारे सेमिनार का बहुत अच्छा था और आगे भी हम ऐसे लेक्चर्स करते रहेंगे, चाहे वो टैक्स प्लानिंग पर हो या लास्ट में जब मार्च में जब आईटीआर फाइलिंग का टाइम आता है उसमें आईटीआर कैसे फाइल करते हैं, इस तरह के कुछ और लेक्चर्स। Sure, sir. थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू निशान, और आपके मधुबाला थी उनका भी थैंक यू, और बहुत अच्छा सेशन चला आपका। और कोई भी क्वेरी हो, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है अभी, तो उसमें कोई भी क्वेरी आप डाल सकते हैं, और बाकी जो लेक्चर है ये हम शेयर करके यूट्यूब पर अपने डाल देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स।